today's webinar. Hello, everyone. Good afternoon, good evening. Sorry for all the inconvenience and the waiting part. But now this session would be really burning because we will talk about the burning issues of GST. A warm welcome to all the chartered accountants present over here. And thank you so much for joining this webinar. I, CA Pooja Rathi Dhoot, Secretary of Jodhpur branch of CIRC of ICAI, would like to introduce today's topic. The topic for the day is the webinar is GST compliances and the burning issues, how to handle them, and which would be presented by our renowned faculty, C. Ankitji Somani. But before introducing him, I would like to welcome Dhaval sir, the chairman of ICAI Jodhpur branch, to address and welcome the faculty. Healthy evening to all. I, CA Dhaval Kothari, Chairman of Jodhpur branch of CIRC of ICAI, welcome you on today's virtual CP meeting. I extend a very warm welcome and greetings to learned speaker of today's VCM, C. Ankit Somani, Regional Council Member of CIRC of ICAI. I also welcome all managing committee members, all the senior members of the profession, participants and viewers. It is very important to take care of year-end compliances. We have seen flood of notices in GST. Looking to this, Jodhpur branch plans to do VCM on this topic. And we are fortunate that C. Ankitji has given his consent in short notice of time. Today's VCM will help in year-end compliance and replying of notices. We are planning many more programs for the members as well as the students. By taking not much of your time, over to you, Pooja ji. Thank you, sir. And now I would like to introduce our renowned faculty before welcoming him and starting the webinar. C. Ankit Somani, a practicing chartered accountant having 3 offices in Rajasthan. He was appointed as special invitee of GST and Indirect Tax Committee of ICAI. Talking about his education, he has secured AIR 32 in CAPE, that is CA Foundation, AIR 43 in CA Inter, and AIR 20 in CS Foundation, AIR 14 in CS Final. He was awarded a silver medal in CS for securing highest marks in advanced company law in CS Final. He secured 100% marks in mathematics, CA Foundation. He was awarded by CBSE for securing 99% marks in accountancy. He has delivered more than 450 lectures in 9 states of pan-India level for income tax, GST, corporate law, Benami properties at many forums in Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Noida, Raipur, Jaipur, Faridabad, Indore, Kanpur, Gwalior, Udaipur, and many other cities. He is a professor of advanced accounts, strategic financial management, that is SFM, and advanced cost management. He has done 3 years articleship from Deloitte involving the area of audit, reviews, merger, acquisitions, and IPO audit. He was a visiting faculty of income tax and GST in faculty development program at Maharishi Dayanand Saraswati University. He has addressed more than 150 webinars during the COVID period, and he was also appointed as a course reviewer of CA course. He is a speaker of GST at ICAI National GST Conference, ICAI National Conference conducted at Jabalpur, National Conference hosted by 5 branches of Rajasthan, GST Conference at Udaipur. He is also a regular speaker on CA, CS, and CMA forums. It is delightful reading your experiences and achievements, sir. We are really grateful and pleasure to have you on this webinar. We welcome you, sir, for your webinar. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you for such a warm welcome. Okay. Thank you, Dhaval sir. It has been always a great pleasure to speak on Jodhpur ICAI Forum. And yes, I do believe and I'm sure that even the learned members will be benefited from the same. First of all, I would like to really pay my thanks and pay my gratitude towards the Jodhpur branch, especially Dhaval sir, Pooja madam, and all other management committee members. I really convey my warm regards and thanks to all of you. Now, without wasting much of the time, I would like to start my presentation. First of all, I would like to really say sorry for the unwanted and inadvertent delay caused due to some technical glitches
जैसा हम सब लोग जीएसटी में जानते हैं कि टेक्निकल ग्लिचेस तो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है, और आज वो समहाउ प्रेजेंटेशन का भी पार्ट बन जाएगा, ऐसी मेरी कतई इच्छा नहीं थी। चलिए, आई विल स्टार्ट विद माय सेशन। I believe my presentation is visible to all. Madam, is the presentation visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, great. So today's session will basically revolve around three important aspects. See, first of all, we will discuss about some year-end compliances or some important aspects to be done for next financial year 22-23. Another point would be noticed on some burning issues on GST. And the third and most important aspect, आपके कोई अगर doubts वगैरह हो, तो you can always ask me, regardless of the fact whether it has been covered in the present session or not. कोई भी GST से related आपके पास कोई भी issues हो. चलिए, let's start with the session. So we are beginning with GST year-end compliances. क्या स्पेशल बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए for the purpose of GST compliance for financial year 22-23 and as far as even for the purpose of closure of financial year 21-22 as well. So for the purpose of financial year 22-23, you will have to start a unique series of invoicing. As per Rule 46B, a new invoice series which must be unique for the financial year is to be started by the GST taxpayer. I think ये बात बहुत comfortable है यार, कि आपने अगर पिछले साल invoice number 1 से start कर लिया था, तो आप इस साल भी invoice number 1 से start कर सकते हैं. Okay. Then similar provision in respect of issue of bill of supply by the registered taxpayers availing composition scheme or supplying exempted goods or services or goods, उनके लिए भी same aspect apply करेगा. So now, in case any assessee has opted for composition, okay, so listen very carefully. In case any assessee has opted for composition, तो जो आपको special बात यहाँ पर ध्यान रखनी है. Excuse me, Ankit sir. Hello. Sir, your screen is not visible. Screen is not visible. Yes. Wait, let me share that again. Is it visible now? Yes, sir, it is visible now. Is it moving now? No, sir. Okay, it's not moving. Is it moving now? Sir, I guess the slideshow is not working. We can present it in normal mode. Okay. Then yes, it is visible now. Presented in this mode only. Is it visible now? Yes. It is completely visible, sir. Okay, fine. Okay. So in case any assessee has opted for composition, then he has to reverse the ITC element in its stock. जो भी उसके पास स्टॉक रिमेनिंग बच गया है, उसका जो ITC एलिमेंट है, उस एलिमेंट को उसे जरूर रिवर्स आउट करना पड़ेगा. वो करना कहीं आप भूल मत जाइएगा. दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ऑल्दो हम सब लोग इसका भी ध्यान रखते ही हैं. देन सम अदर GST कंप्लायंसेस, किसी की अगर LUT एप्लीकेबल है, be it in the case of exports or be it in the case of SEZ supplies, अगर कोई LUT एप्लीकेबिलिटी की बात है तो जरूर वो LUT अप्लाई कर लें. इट इज हार्डली a 5 minutes प्रोसेस, पर LUT अप्लाई करना जरूर है. इन केस यू फॉरगेट टू अप्लाई फॉर LUT, देन देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उस सप्लाई के ऊपर भी आपके पास टैक्स लग जाए. कुछ इंपॉर्टेंट बातें ITC को लेकर.
reconcile ITC as per books of accounts and avail any ITC not claimed earlier in GSTR 3B. जो भी हमारे पास ITC 3B के अंदर दिख रहा है और books of accounts के अंदर दिख रहा है, हम उन दोनों ITC को कंपेयर करेंगे and in case any ITC which has not been availed till now in GSTR 3B, उसे हमें जरूर avail कर लेना है within the respective time. जो टाइम लिमिट हमारे पास नेक्स्ट ईयर सितंबर में अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की थी एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, वो टाइम लिमिट इस बजट के अंदर बढ़ाकर अप टू 30th ऑफ नवंबर कर दी है. आई रिपीट, हमारे पास जो टाइम लिमिट ड्यू डेट ऑफ सितंबर तक की थी ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो इसी बजट में अप टू 30th ऑफ नवंबर कर दी है. आप समझिए जरा इस बात की क्या इंप्लीकेशन है. पहले वो डेट थी ड्यू डेट ऑफ सितंबर, नाउ द डेट इज 30th ऑफ नवंबर. ड्यू डेट का कंसेप्ट उसके अंदर खत्म हो गया है, राइट. देन अगर आपसे कोई आईटीसी कोई लेने आपसे रह गए हैं और अगर वो जीएसटीआर 2A और 2B में अवेलेबल हैं, तो आप जरूर ये कोशिश करें कि उनके इनवॉइसेस आपके पास अरेंज हो जाएं. आप ये चेक कर लीजिए दैट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 उसकी कंडीशंस जो है वो मीट आउट हो रही हो. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या है फ्रेंड्स? उसमें 4 कंडीशंस आपके पास हैं. पहली इंपॉर्टेंट बात, आपके पास इनवॉइसेस हो. नाउ कैन द इनवॉइसेस बी इन सॉफ्ट कॉपी एज वेल? हार्ड कॉपी इनवॉइसेस हो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो इनवॉइसेस सॉफ्ट कॉपी के अंदर भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड दे आर डिजिटली साइंड. इस बात का खास ध्यान रखिएगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर 16 सबसेक्शन 2 फॉर क्लेमिंग और अवेलिंग आईटीसी, गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो गए हैं. इसमें बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास जरूरी नहीं है एक्चुअल फिजिकल रिसीविंग, आपके माध्यम से आपके थ्रू किसी और को रिसीव हो गए हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस ओनली कि आपके सप्लायर ने इसका टैक्स पेमेंट कर दिया हो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41. देन डी क्लॉज सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का आपने उसे आईटीसी को अवेल कर लिया हो. देन फर्दर अगर कोई आईटीसी ऐसा हो, अगर कोई इनवॉइस ऐसा हो जो इसका आईटीसी आपने तो अवेल कर लिया हो जीएसटीआर 3B में, बट दैट इनवॉइस इज नॉट प्रेजेंट इन जीएसटीआर 2A और 2B, तो आप अपने सप्लायर को टाइमली उसको जरूर इन्फॉर्म करें और उससे जरूर ये कोशिश करें कि वो जीएसटीआर 1 में ये इनवॉइस पुट अप कर दे सो दैट इट इज विजिबल इन योर जीएसटीआर 2A एज वेल. फर्दर अपन इनपुट की ही और बात करें तो कोई भी आपके पास अगर इनएलिजिबल आईटीसी है, भले वो ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है या आईटीसी ऑन एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, उसका हमें बिल्कुल भी आईटीसी नहीं लेना है. अगर आपने ऐसा कोई आईटीसी लिया है, देन इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर ऑब्लिगेशन टू रिवर्स आउट सच आईटीसी अलोंग विद इंटरेस्ट. वंस अगेन ये पेमेंट की जो बात है 180 डेज के अंदर आपको सप्लायर को जो पेमेंट करना है, ऑल्दो ये डिस्कस अपन करेंगे भी, इसके कुछ साइलेंटली अपन डिपार्टमेंट से अगर बात करते हैं तो डिपार्टमेंट वाले भी आपको कहते मिलेंगे इसको कैसे चेक करें, क्या चेक करें. तो ऑल्दो ये जो चेकिंग है ये सुओ मोटो करनी है. क्या चेक करना है इसमें आपको कि 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट किया है या नहीं किया है. 180 डेज में सप्लायर को पेमेंट किया है या नहीं किया है. वेट वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज वहां पर इन रेस्पेक्टिव प्लेस इन सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जहां पर ये लाइन लिख रखी है, जहां पर 180 डेज का कंसेप्ट है, वहां पर ऐसा लिख रखा है इन केस द रिसिपिएंट फेल्स टू पे. तो हालांकि फेल्स टू पे का क्या कंसेप्ट है, कैसे है, वो अपन आगे जैसे सेशन प्रोग्रेस करेगा उसके अपन जिक्र करेंगे. Then check if the supplier is registered under composition scheme and collected GST. Reverse such ITC along with interest. अगर आपका कोई ऐसा सप्लायर है जो कंपोजिशन में हो and if he has collected GST from you, even then you cannot avail the ITC on the same. Next point is very important. और इस पॉइंट के बेसिस पर कई सारे नोटिस भी इशू हो रहे हैं. आपने किसी से गुड्स प्रोक्योर करे and after that the registration number of your supplier is cancelled on account of either non-payment of taxes or non-filing of returns or for any other factor. अगर आपको ये बात पता लग जाती है, then it is very much necessary for you as a recipient to kindly communicate with your supplier, because in later stages there may be a possibility that you receive notice from department to reverse out such ITC belonging to outward tax liability of such supplier whose registration has been cancelled. तो ऐसा अगर आपके किसी सप्लायर का रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया है तो उसके लिए आप थोड़ा सा स्पेशल ध्यान जरूर रखिए.
कैसे करेंगे सर? ये कैसे पता पड़ेगा कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है? क्या हम उसका हर बार जीएसटी नंबर चेक ही करते रहें? सर हर बार तो चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एटलीस्ट वंस इन अ मंथ तो आप ये एक रूटीन हैबिट बना ही लें कि आपके जो मेजर सप्लायर्स हैं उनका जीएसटी नंबर, जीएसटी आईडी डालकर जरूर ये चेक कर लीजिए whether their registration is in place or not. Now next point is avail any missing ITC on RCM paid. देखिए जो अधिकतर असेसी से प्रॉब्लम हो रही है अभी इन द केस ऑफ आरसीएम, हम ये बात डिस्कस भी करेंगे, डिटेल के अंदर भी हम इस बात पे जाएंगे। बाकी फिर भी इन जनरल जो आपके पास प्रॉब्लम जो हो रही है अभी वो ये कि एज पर सेक्शन 31(3)(f) हर एक केस में रिसिपिएंट को in case the inward supply is liable to RCM, then he has to prepare self invoice. आप अपने क्लाइंट्स को इस बारे में एजुकेट जरूर कीजिए कि आपको हर एक केस में सेल्फ इनवॉइस बनाना है इन केस द इनवर्ड सप्लाई इज लायबल टू आरसीएम। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि उसने मतलब आपके क्लाइंट ने ऐसा सेल्फ इनवॉइस बनाया है या नहीं बनाया है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज इन केस डिपार्टमेंट आस्क्स फॉर सेल्फ इनवॉइसिंग, then your client or your assessee must be always ready. उसके पास वो जो इनवॉइस है वो हर वक्त तैयार मिलना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। देन फर्दर आउटवर्ड सप्लाई की अगर अपन बात करें तो आपको रिकंसाइल करना है टर्नओवर, बुक्स का टर्नओवर आपको रिकंसाइल करना है जो आपने जीएसटी रिटर्न्स में फिलअप करा। जीएसटी रिटर्न्स में आपने टैक्सेबल, एग्जाम, नॉन जीएसटी सप्लाई के नाम पे भरा जैसा भी, तो आपको उसको जीएसटी रिटर्न्स में जीएसटीआर1, जीएसटीआर3बी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये तीनों आपके पास जरूर आपस में रिकंसाइल्ड हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि अदरवाइज अगर ये रिकंसाइल नहीं है देन द option with you is to get the same rectified till due date of return of September, till the time that new provision does not come into effect, और in case वो जो provision है जो इस बजट के अंदर अनाउंस हुआ तो फिर up to 30th of November हो जाएगी वो डेट, right? Then reconcile taxes paid along with books of accounts and GSTR1 and GSTR3B file। क्या मतलब इस बात का? ऊपर वाले केस में तो टर्नओवर को रिकंसिलिएशन था, इस वाले केस में आपको टैक्सेस का रिकंसिलिएशन। आप अपने इनवॉइसेस को भी जरूर चेक करिए, वेरीफाई करिए, ईवे बिल की कंप्लायंस जो है वो हुई है कि नहीं हुई है वो जरूर चेक करिए। जैसे भी कोई केसेस हैं जहां पर ईवे बिल की रिक्वायरमेंट थी लेकिन जनरेट नहीं हो पाए हैं, प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑन योर साइड, या फिर कोई आपके पास कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था, इन ऑल सच केसेस आपके पास वो केसेस नोटेड डाउन होने चाहिए। Check if IRN is generated for all B2B export invoices and debit or credit notes if e-invoicing provisions are applicable। e-invoice के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। Then reconcile the invoices issued to customer with GSTR1 file। जो भी आपने GSTR1 फाइल कर दी है और जो इनवॉइसेस आपने कस्टमर्स को, स्पेशली इन द केस ऑफ B2B इनवॉइसेस जो आपने इशू करे हैं, कम से कम वो तो जरूर मैच हो ही हो। इस बात का स्पेशल आप जरूर ध्यान रखा कीजिए। Then further क्रॉस चार्ज, सी जीएसटी इंप्लीमेंट हुए ऑलमोस्ट 5 years होने वाले हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट इवन अवेयर अबाउट क्रॉस चार्ज। इस बात का भी स्पेशल ध्यान रखिए। सी व्हेनेवर इट इज अ केस ऑफ 2 GST registrations in the name of same assessee, यहाँ पर जो मैं सेम assessee की बात कर रहा हूँ वो आप ऐसा मानिए विद सेम पैन नंबर, समझ रहे? तो भले ही वो डिफरेंट स्टेट्स में हो चाहे वो सेम स्टेट में हो, लेकिन देयर मे बी अ पोजीशन, देयर मे बी अ कंडीशन, देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर बाय 1 GST रजिस्ट्रेशन नंबर और 1 GST ID or basically 1 GST assessee is providing some services to other GST assessee, राइट? वो हमारे जानने पहचानने की जरूरत नहीं है। कई बार वो ऑन अकाउंट ऑफ अकाउंटिंग कन्वीनियंस के तौर पर हो जाता है, या कोई कॉमन एडवर्टीजमेंट हो गया, या फिर आपके पास कोई भी कॉमन एक्सपेंडिचर्स हो गए, राइट? उन सब के लिए इट इज एडवाइजेबल कि आप कोई भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट चार्ज कर दें फ्रॉम 1 GST रजिस्ट्रेशन नंबर टू अनदर GST नंबर। नाउ दिस शुड बी डन
to reduce or to avoid any later on conflicts which may arise, कि आपके एक जीएसटी आईडी ने, आपके एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ने दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर को कोई सर्विसेज दी, कोई सप्लाई करी और उसका इनवॉइस आपने जनरेट नहीं करा, इसकी टैक्स लायबिलिटी भी आपने पेमेंट नहीं करी, correspondingly अगर हम इसका इनवॉइस जनरेट कर दें and if we pay off the output tax liability, then immediately the ITC will also be received to the other department or to the other GST registration number. तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. आपके पास अगर कोई भी ऐसे केसेस हैं, then make it a point to advise your client to please generate an invoice for the purpose of issues of cross charge. एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पर बहुत जरूरी है, एज पर सेकंड प्रोविजन टू रूल 28, अगर कभी भी ऐसा होता है कि रिसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलेगा, रिसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलेगा, मतलब फुल आईटीसी कब कब नहीं मिलता, whenever the recipient is dealing in exempted supplies, कुछ भी अगर exempted supplies में अगर वो डील कर रहा है तो उसे full ITC नहीं मिलता है. Otherwise for all practical purpose recipient is always eligible for full ITC, right? Then whatever value is declared in the invoice, it shall be deemed to be the open market value. मेरा मतलब suppose किसी एक GST नंबर से आपने दूसरे GST नंबर को अगर बिलिंग भी कर दी है तो भी ultimately it is not going to create any valuation issue provided the recipient is eligible for full ITC. आपने जो अमाउंट उसमें लिख दिया that is deemed to be the OMV, open market value, उसी को मान लिया जाएगा. उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, कितनी नहीं होनी चाहिए थी, मतलब रूल 28 के अंदर या इवन रिलेटेड पार्टीज के हिसाब से हम बात करें वो सब यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, राइट. देन गोइंग फर्दर, ई-इनवॉइसिंग. यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आप लोगों सब लोगों से भी कुछ रिप्लाईज चाहिए. आप लोग भी अपना चैट बॉक्स ऑन कर सकते हैं. किसके ऊपर एप्लीकेबल है, थोड़ा सा प्लीज आंसर करें आपके चैट बॉक्स पे. ई-इनवॉइसिंग किसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ है? आई हैव enabled the chat box for all the participants. इनवॉइसिंग किस असेसी के ऊपर एप्लीकेबल हुआ है या क्या टर्नओवर की कुछ लिमिट है? फाइन फाइन फाइन, मेरे पास कुछ आंसर आ गए हैं. अबाउट 20 करोड़ टर्नओवर. आई बिलीव टर्नओवर शब्द जब यहाँ पर बोल रहे हैं तो यहाँ पर अधिकतर लोगों का व्यू एग्रीगेट टर्नओवर से है. दिस इज आई एम अज्यूमिंग. फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर यू हैव टू रेफर सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ CGST एक्ट, राइट. सेक्शन 2 क्लॉज 6 को आपको जरूर यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा. एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस लिमिट, प्लीज माइंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस लिमिट, आपको यहां पर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज, ये दोनों देखनी पड़ेगी. अच्छा, फर्ज करिए कि एक जीएसटी नंबर से, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, एक असेसी के दो अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, एक असेसी के दो अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है. क्या वो दोनों जीएसटी रजिस्ट्रेशंस का टर्नओवर काउंट होगा? क्या वो दोनों जीएसटी नंबर्स का रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर काउंट होगा? प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स. आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? एक एसएससी के दो या दो से ज्यादा जीएसटी नंबर हैं, क्या वो दोनों तीनों रजिस्ट्रेशंस के जो एग्रीगेट टर्नओवर है क्या वो कंसिडर किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग दिस लिमिट ऑफ 20 करोड़? यस, ओके फाइन. मैक्सिमम पर्संस, मैक्सिमम मेंबर्स, मैक्सिमम अटेंडीज हैव गिवन द आंसर यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक बात है. अब ये एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट के लिए मुझे कौन सा साल देखना है? फाइनेंशियल ईयर 21-22 देखना है या और प्रीवियस ईयर देखना है, 2021 देखना है? मुझे कौन सा साल देखना पड़ेगा? यहाँ पर कौन सा वाला साल देखना पड़ेगा? फाइन फाइन फाइन, अगेन आंसर्स आर बीइंग रिसीव्ड ऑन चैट बॉक्स कि कोई से भी प्रीवियस ईयर में if the limit crosses 20 crores, then again this concept of e-invoicing would be made applicable. मैं थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ता हूँ, जरा गौर सुनिएगा. For the purpose of financial year 17-18, क्या एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन के लिए मुझे पूरा साल देखना चाहिए या मुझे सिर्फ 9 months देखना है? For the purpose of aggregate turnover,
क्या 17-18 के लिए मुझे 9 मंथ्स देखने चाहिए या पूरा साल देखना चाहिए? Fine. Majority of the members are attendees are giving the answer is 9 months. कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि फुल ईयर देखना चाहिए. इसमें जरूर एक कंफ्यूजन आ रहा है. हाँ जी. तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि 9 मंथ्स ही देखना चाहिए? ऐसा आपको क्यों लगता है? प्रोबेबली जिन लोगों ने भी 9 मंथ्स लिखा उन लोगों को ऐसा लगता है कि जीएसटी तो आखिरी 9 महीने में ही था, फ्रॉम जुलाई 17 टू मार्च 18. तो फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर मुझे सिर्फ जीएसटी पीरियड का टर्नओवर ही देखना चाहिए. प्रोबेबली ये उनका माइंडसेट हो सकता है. और 12 मंथ्स लिखने वालों का माइंडसेट ये हो सकता है कि एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 क्लॉज 6 की जो डेफिनेशन है उसमें तो टर्मिनोलॉजी प्रीवियस ईयर लिखना चाहिए. तो फिर हमें मानना क्या चाहिए? देखिए, अगर आपके पास मतलब हमें यहाँ पर सेफ खेलना चाहिए. टू माय अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पर सेफ खेलना चाहिए, राइट? तो एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी तो ये बनती है कि से फॉर एग्जांपल 9 मंथ्स का टर्नओवर तो 18 करोड़ था, लेकिन शुरुआत के 3 महीने का टर्नओवर 3 करोड़ था. अगर हम सेफ खेलें देन आइडियली उस पे ई इनवॉइसिंग फॉलो कर देनी चाहिए, क्योंकि ई इनवॉइसिंग वैसे भी ई इनवॉइसिंग को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते थे और इसको वॉलंटरी बेसिस पर अप्लाई किया जा सकता था. यस, आई एग्री. Ashutosh Sharma ji is saying that the same was clarified for the purpose of annual return. Yes sir, I do agree, but the answer is hidden in your line itself. The same was clarified only for annual return, right? तो annual return के लिए जरूर उन लोगों ने केवल 9 मंथ्स की बात करी, 9 मंथ्स की ही बात करी. सपोज ये 9 महीने के अंदर 18 करोड़ का ही टर्नओवर है, तो देन आइडियली टू अवॉइड एनी डाउट्स I think it is advisable कि हमें voluntary registration या voluntary e-invoicing follow कर देना चाहिए. Now one more practical question जो हर एक के लिए आएगा. What if some other charges like transportation cost is to be charged in invoice? भाई वो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी लगाते हैं कई बार इनवॉइस के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगाते हैं. तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं उन चार्जेस के साथ में ई इनवॉइसिंग में किस तरीके से कहानी मैनेज होगी? आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस करके तो उसमें कोई कॉलम है नहीं. जैसे ही आप ई इनवॉइसिंग का पोर्टल खोलते हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस करके कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं अवेलेबल है. तो फिर अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम किस तरीके से एडजस्ट करें? क्या हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऑल टुगेदर अवॉइड कर दें? अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऑल टुगेदर अवॉइड कर देते हैं then in that case, समझिएगा, then in that case उसमें जो बहुत बड़ा इशू ये आएगा कि आपके ई इनवॉइसिंग का अमाउंट और एक्चुअल इनवॉइस का अमाउंट या ईवी बिल का अमाउंट मिसमैच हो जाएगा. तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते. क्या इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आप अदर कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं? सर अदर कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे तो फिर उस पर जीएसटी कैसे अप्लाई होगा? समझ रहे हैं? अगर आप अदर कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे तो उस पर जीएसटी कैसे अप्लाई होगा? तो यहां पर आपके पास दो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं. वन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो इसके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बनती है वो ये कि आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को जस्ट लाइक सपोज आप 4 अलग अलग तरह के गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, 4 अलग अलग तरह के गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आप इनवॉइस के अंदर चारों गुड्स का नाम लिखते हैं. वैसे के वैसे आप उसके अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और लिख दीजिए, उसका एचएसएन भी लिख दीजिए और उसकी जीएसटी रेट भी आ जाएगी. एक ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को या लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस को या व्हाटएवर अदर चार्जेस को आप इसमें जो भी आपके 4 तरह के गुड्स हैं उन चारों तरह के गुड्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. उन चारों तरह के गुड्स में आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. क्या होगा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करने से? ध्यान से सुनिएगा. ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा? अल्टीमेटली वो डिस्ट्रीब्यूट होकर जो प्रोडक्ट की रेट है उसी प्रोडक्ट की रेट पे अप्लाई हो जाएगा, राइट? दूसरी बात, इसके अंदर एक और जो पॉइंट आता है वो ये, कहीं इसमें मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई का कंसेप्ट अटक गया तो क्या फिर उस केस में मुझे हाईएस्ट रेट की गुड्स की बात करनी पड़ेगी कि जो भी हाईएस्ट रेट है उसी रेट के ऊपर मुझे अदर चार्जेस भी अप्लाई करने पड़ेंगे?
तो यस, ऐसा भी कंसेप्ट अगर आए तो उसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। और भी अगर अपन सोचें तो ई इनवॉइसिंग के केस में जो एक और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ रही है वो ये कि शुरुआत के टाइम में तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल ही नहीं था। जब शुरुआत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुए थे, ध्यान से सुनिएगा, जब शुरुआत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुए थे तो उस समय एक आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा गया था, एक ईमेल आईडी मांगा गया था, और अब ई इनवॉइसिंग का रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से मैं आपके, मेरे, हम सबके सीए ऑफिस की बात कर रहा हूँ, उस समय जो आर्टिकल्स थे उन्होंने एक बार ओटीपी पर्पस के लिए खुद का मोबाइल नंबर डाल दिया। नाउ सपोज इफ वो स्टूडेंट ने अपना मोबाइल नंबर ही चेंज कर लिया, दैट स्टूडेंट इज नो लॉन्गर योर आर्टिकल, अब तो सीए बन चुका हो, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। नाउ यू कैन नॉट टाइम एंड अगेन डिस्टर्ब हिम फॉर द पर्पस ऑफ ओटीपी, या हो सकता है उसने अपना नंबर भी स्विच ऑफ करा दिया हो। उस केस में क्या करेंगे सर? उस केस के अंदर आप डिपार्टमेंट में लिख कर दे दें और आपको नया ईमेल आईडी और नया आप नंबर लिखवा दें, उसके ऊपर आपके पास जरूर वो ओटीपी रिसीव होने लग जाएंगे। Just like even this was a facility given in GATE itself. Then further, कुछ बर्निंग इश्यूज की अपन बात करें तो जो नोटिसेस आपके पास आने लग गए हैं, डेफिनेटली आईटीसी तो एक उनमें से एक बहुत बड़ा इशू रहेगा ही रहेगा, और शायद ये आईटीसी की प्रॉब्लम तो बहुत लंबे टाइम तक चलती ही रहेगी, राइट? नाउ फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी जो हमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की बात करनी है, पता ये हम सबको है, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें बार बार याद दिलाने चाहिए। जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, राइट? जरा ध्यान से देखिए, सपोज इफ गुड्स वर नॉट डिलीवर्ड बिफोर ईयर एंड ऑल्दो गुड्स वर डिस्पैच्ड बिफोर ईयर एंड, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? डिस्पैच तो हो गए थे लेकिन वो डिलीवर नहीं हुए थे, क्या उस केस में आप अपना आईटीसी ले सकते हैं? क्या उस केस में आप ये आईटीसी अवेल कर सकते हैं? प्लीज आंसर ऑन चैट बॉक्स। फाइन फाइन फाइन, सभी लोगों को एकदम क्लैरिटी से पता है कि हाँ भाई इस केस में आप आईटीसी तो नहीं ले सकते। अब जरा गौर कीजिए, अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, समझ रहे हैं आप? फर्ज करिए 26 मार्च को गुड्स डिस्पैच हुए सप्लायर के यहाँ से, सुनिएगा ध्यान से, 26 मार्च को गुड्स डिस्पैच होते हैं सप्लायर के यहाँ से, और आपके यहाँ तक गुड्स पहुंचते हैं 3rd of April को। पॉसिबल है ऐसा? आपके यहाँ पहुंचते हैं 3rd of April को। इनवॉइस पर तो डेट 26 मार्च ही लिखी है, आई रिपीट, इनवॉइस पर तो डेट 26 मार्च ही लिखी है, एंड हेंस द अकाउंटेंट सिटिंग इन द ऑफिस ऑफ क्लाइंट, द अकाउंटेंट सिटिंग इन द ऑफिस ऑफ क्लाइंट, वो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री इनवॉइस की डेट से करता है। आई रिपीट, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री अपने सिस्टम में, वो टैली में, वो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर वो 26 मार्च की डेट पे ही करता है। और जब वो सिस्टम जनरेटेड 3B जनरेट करता है तो डेफिनेटली मार्च की आईटीसी बन जाती है, राइट? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे वो टैली से निकालेगा कि 3B रिपोर्ट मुझे जनरेट कर दीजिए, और अगर आपने इसको 26 मार्च की डेट में बुक कर रखा है तो फिर वो क्लियरली इसको मार्च का आईटीसी का ही पार्ट बना देगी। इस पॉइंट को लेकर अब नेक्स्ट जो है डिपार्टमेंट के कई सारे इशू होने लगेंगे नोटिस, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ योर रेफरेंस मैंने यहाँ पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 दोबारा लिख दिया है, लेकिन आप इसको जरूर जरूर गौर से पढ़िएगा। सुनिए एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों के लिए, चैट बॉक्स पे अगर आप मेंबरशिप नंबर लिख भी रहे हैं उससे आपको इसमें किसी भी हालत में कोई सीपीआर्स क्रेडिट नहीं हो रहे, राइट? पूजा मैडम, सीपीआर्स तो आई बिलीव शायद वो अगर एंड तक कनेक्टेड रहेंगे तो ही मिलेंगे। बिल्कुल सर, है ना? तो चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे चलेगा मेंबर? those members who will sir, those members who will attend the entire program will be awarded CP hours. ओके, तो चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे चलेगा मैडम? हाँ चलेगा सर, हम we are noticing सर। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, फाइन। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में
क्लॉज बी जो है, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इस बात का आप जरूर जरूर ध्यान रखिए। ये जो बी पॉइंट है ना, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। एंड नाउ ये केवल इसी पॉइंट को लेकर जो मैंने लिखा, गुड्स वर नॉट डिलीवर्ड बिफोर ईयर एंड, ये कैसे ट्रेस आउट होगा? देखिए, कोई भी आपके जीएसटीआर 2A, कोई भी आपके जीएसटीआर 2A को खोल के अगर देखता है और उसमें जो भी ईयर एंड से 2-4-5 दिन पहले के जितने भी इनवॉइसेस हैं, डेट वाइज अगर उनको सॉर्टिंग कर ली जाए, अगर उनको डेट वाइज सॉर्टिंग कर ली जाए, तो उस केस के अंदर बहुत इजीली इसके ऊपर नोटिस दिया जा सकता है। कैसे प्रूव होगा? फ्रॉम योर साइड। ये चीज प्रूव कैसे होगी फ्रॉम योर साइड? हाँ जी, तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस चीज को प्रूव करने के लिए आपके पास एक गुड्स इनवर्ड रजिस्टर होना चाहिए। आई रिपीट, आपके पास एक गुड्स इनवर्ड रजिस्टर होना चाहिए। एंड दैट गुड्स इनवर्ड रजिस्टर विल डेफिनेटली बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर कभी भी आपके पास कोई ऐसा कंसेप्ट आता है जिसके अंदर फॉल्स इनवॉइसिंग या बोगस इनवॉइसिंग का केस अगर बनता है। समझ रहे हैं? सपोज अगर, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सपोज अगर आपका जो सप्लायर है वो किसी ना किसी इस तरह के बोगस इनवॉइस के इशू में कहीं ना कहीं उलझ गया है, या आपके पास एक नोटिस आता है दैट सो एंड सो गुड्स वर नॉट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम योर साइड, सो एंड सो गुड्स वर नॉट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम योर साइड, समझ रहे? तो उस केस के अंदर वो जीआर नोट, गुड्स रिसीव नोट, जीआरएन जो है, वो आपके पास बहुत ज्यादा काम आएगा, राइट? नाउ व्हाट इज टू बी डन इन द केस ऑफ सर्विसेज? सर जीआर नोट तो बना देंगे हम, हमारे पास एक गुड्स इनवर्ड रजिस्टर भी हो जाएगा। आपके पास अगर कभी भी कोई बोगस इनवॉइसिंग का केस अगर बन जाता है तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आपको साथ में स्टॉक समरी देनी ही है, आपको गुड्स इनवर्ड रजिस्टर की कॉपीज भी वहां पर अवेलेबल करानी ही है। दैट विल बी फर्स्ट हैंड, that will be considered as a first hand positive point from the side of assessee कि इसके पास तो भैया गुड्स इनवर्ड रजिस्टर ही बन रखा है, मतलब ये गुड्स वाकई में आए ही होंगे, आप ध्यान रखिएगा। बट सर्विसेज के केस में क्या करें? तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अधिकतर assessee, when I am saying अधिकतर, यहां पर उसका मतलब 99% भी हो सकता है, 99% assessee कभी भी जैसे अपन गुड्स रिसीव नोट बनाते हैं वैसे ही सर्विसेज रिसीव नोट भी बनाया जा सकता है। वो नहीं बना रहे हैं, आप वो प्लीज बनवाना चालू कीजिए, बी इट इन द केस ऑफ कमीशन एंट्रीज और बी इट इन द केस ऑफ एंट्रीज फॉर ब्रोकरेज और बी इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंट्रीज और व्हाटएवर जो भी कोई आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज हैं, उन सबका आप फ्रॉम योर ओन साइड एक सर्विसेज रिसीट नंबर भी बनाना चालू कीजिए, राइट? बीट द फैक्ट कि आपके पास हो सकता है कि सॉफ्ट कॉपी के अंदर ही हो, लेकिन फिर भी अगर वो जब सर्विसेज का आपके पास इनवॉइस आएगा उसके अंदर ये सर्विस रिसीव नंबर भी अगर आप लगा देंगे साथ में कॉपी, दैट विल बी अगेन बेनिफिशियल फॉर यू इन केस एनी फर्दर इशू अराइजेस कि आपने तो ये सर्विस ली ही नहीं है। ओके, देन फर्दर अगर हम इसे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 को एक बार जरा गौर से देखें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, then you will find that this section 16 subsection 2 starts with non-obstante clause, notwithstanding, समझ रहे हैं आप? notwithstanding anything contained in this section, मतलब section 16 subsection 1, 3, 4 में कुछ भी लिखो, लेकिन section 16 subsection 2 will prevail in its entirety by itself without prejudice to anything contrary stated in section 16 subsection 4 or subsection 1 or subsection 3, समझ रहे हैं आप? तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 एक इंडिपेंडेंट सेक्शन की तरह पढ़ा जा सकता है। मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूं यहाँ पर? बिकॉज दिस पॉइंट, दिस क्लॉज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफेंड एनी नोटिस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। देखिए ऐसा है, हम सभी लोगों के पास ऐसे बहुत सारे एसएससी होंगे, सुनिएगा, ऐसे बहुत सारे एसएससी आए होंगे जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन को रीस्टोर कराया होगा, समझ रहे? जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन रीस्टोर कराया होगा, मेरे कहने का मतलब है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया होगा, प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। फिर जब लास्ट ईयर की एमनेस्टी थी, जब लास्ट ईयर एमनेस्टी आई थी, राइट, तब उन लोगों ने वो आईटीसी के साथ में रिटर्न्स भरी थी, समझ रहे? तो से फॉर एग्जांपल वो जून 2021 में
जुलाई 2021 में, अगस्त 2021 में, यूजिंग द बेनिफिट ऑफ एमनेस्टी स्कीम, उन्होंने जुलाई 17 के रिटर्न, अगस्त 17 के रिटर्न, दिसंबर 17 के रिटर्न, व्हाटएवर पीरियड रिटर्न उन्होंने भरी, उनने आईटीसी भी अवेल करा 3B के अंदर. तो इट इज डीम्ड that those assessees would be getting notices of section 16 subsection 4. उस समय आपके पास ये section 16 subsection 2 का non-obstante clause, notwithstanding anything contained in this section, ये लाइन बहुत ज्यादा काम आएगी. पहली इंपॉर्टेंट बात. और भी हम बात करेंगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के नोटिसेस अगर आते हैं तो हमें क्या क्या बातें, क्या क्या हमारे रिप्लाई में इंक्लूड करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. खैर, थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर अगर और करना चाहूँ तो अगर किसी भी केस में किसी भी असेसी का, अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो गया था, सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी का भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर कैंसिल हो गया था, तो इट इज माय सिंसियर एडवाइस कि आप एक बार नोटिफिकेशन नंबर 15 जरूर देखिए. आप लोग एक बार नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 जरूर देखिए. इट वाज बीइंग पब्लिश्ड, इट वाज बीइंग इशूड ऑन 18th May 2021. आप चाहें तो ये नोट कर लीजिए. देखिए नोटिफिकेशन नंबर 15 जो था वो बहुत ज्यादा काम का है. हो क्या रहा था कि आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, इसका कम्युनिकेशन कब हुआ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका जब कम्युनिकेशन होता है तब से आपको 30 दिन मिलेंगे. आई रिपीट, जिस दिन आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, बैक डेट से कैंसिल हो रहा है वो, तो जिस दिन ये इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट की गई, जिस दिन ये इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट की गई है, उस दिन से 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा. तो आप ये नोट कर लें. नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 सेंट्रल टैक्स 18 मई को आया था. 18 मई, 18th May 2021. ठीक है. नाउ दिस नोटिफिकेशन इज टू बी रेड, आई रिपीट, दिस नोटिफिकेशन इज टू बी रेड along with Rule 23, along with Rule 23 CGST rules, along with Rule 23 CGST rules. Even Section 30 of CGST Act is to be read here. Section 30 of CGST Act, ठीक है. और डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था, सर्कुलर नंबर 148, सर्कुलर नंबर 148/04/2021, सर्कुलर नंबर 148/04/2021. ये सर्कुलर भी 18 मई को ही आया था, 18th May 2021. ये सर्कुलर भी आपके पास बहुत ज्यादा काम का हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ एनी कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर. समझ रहे हैं आप, वापस उस जीएसटी नंबर को लाने के लिए. ठीक है. तो ये बात भी आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है. 16(4) के नोटिस आएंगे तब भी ये बात काम में आ सकती है. देन अगेन ए पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं. He must be in possession of tax invoice और डेबिट नोट, जो भी उसे सप्लायर ने इशू कर दिए हैं. अगर सॉफ्ट कॉपी के अंदर है, इट मस्ट बी डिजिटली साइन. भी ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके पास अगर व्हाट्सएप पर अगर फोटो आ गई है, दैट इज नॉट एलिजिबल, या मेल पर आ गई है, दैट इज नॉट एलिजिबल. ये ध्यान रखिएगा. He has received the goods or services or both. नाउ यहाँ पर वो जो रिसीव्ड जो वर्ड है, यहाँ पर जो रिसीव्ड वर्ड है, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ में थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में आपको लेना पड़ेगा. और बिल्ड टू शिप टू कंसेप्ट इसके अंदर कवर हो रहा है एज पर द एक्सप्लेनेशन. ऑल्दो आई अग्री, बिल्ड टू शिप टू कॉन्सेप्ट जो है वो टर्मिनोलॉजी आपके पास फरवरी में, मार्च में 2018 में आई थी, 2018 में आई थी, राइट. लेकिन ये एक्सप्लेनेशन डे 1 से है जीएसटी में. C point, subject to the provisions of Section 41. Mind my friends, subject to the provisions of Section 41, the tax charge in respect of supply has been actually paid to the government, either in cash or through utilization of ITC admissible in respect of said supply. See, I am not going to name the assessee, but yes, एक assessee को इस तरह के नोटिस भी आए थे. चित्तौड़ की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, मैं चित्तौड़ की बात कर रहा हूँ कि ऐसा बोला गया उसके सप्लायर ने 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी अपने आईटीसी से जमा कराई, एंड हेंस नो पार्ट ऑफ कैश वाज बीइंग पेड बाय सच सप्लायर. और इस कारण से आपको आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा. अरे भाई, रूल 86 भी लगाना है तो उस पर लगाइए. आप समझिए जरा, रूल 86 भी अगर लगाना है तो उस पर लगाइए, आपके ऊपर वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा. डी पॉइंट है, डी क्लॉज है, ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न. अब यहाँ पर ही कौन सर, यहाँ पर ही का मतलब रेसिपिएंट. Recipient has furnished the return under Section 39. So, okay. Surbhi ji is asking one question on checkbox. So, for 26 March invoice example, we can take ITC. See, definitely you can avail ITC. You can avail ITC words use कर रहा हूँ मैं. But in April, मैं क्यों बोल रहा हूँ April? क्योंकि उसे वो goods April में receive हुए थे. In my example, they were being received on
3rd of April, तो उसे वो अप्रैल का ITC बनाना है, राइट? ओके, फर्दर तो एक पॉइंट यहां पर और निकल कर आता है। इसका मतलब ये हो गया कि बुक्स के अंदर तो मैं एंट्री 26 मार्च की करूंगा, क्योंकि इनवॉइस की डेट से करता हूं मैं तो एंट्री, लेकिन इसका आईटीसी आपको अप्रैल में लेना है, इसका आईटीसी आपको अप्रैल में लेना है, एंड हेंस देयर वुड बी डेफिनेटली अ रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड, समझ रहे हैं आप? और वो बुक्स ऑफ अकाउंट से और 3B से मिसमैच चलता ही रहेगा और इसको आप ठीक भी नहीं कर पाएंगे, करेक्ट? फर्दर, सपोज इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स, अच्छा आशीष जी ने एक और पॉइंट लिखा उसमें, बट सर नाउ आईटीसी इज अलाउड एज पर 2B, ठीक कह रहे हैं आप एकदम कि भाई आईटीसी जो है वो तो 2B के अकॉर्डिंग आपके पास मिलता है, बिल्कुल ठीक कहना चाह रहे हैं। मतलब इनफैक्ट मैं इस पॉइंट को यहाँ पर नहीं लाना चाह रहा था, मतलब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA भी एक ऐड हो गया है, वो मैंने बर्निंग इश्यूज में वैसे ही कवर कर रखा है, राइट? पर खैर ठीक है, अपन यहीं पर वो कंसिडर कर लेते हैं, मैंने तो वो अदर टॉपिक्स के नाम से ओपन एंड छोड़ रखा था, पर ठीक है अपन उसको यहीं कंसिडर कर लेते हैं। सर देखिए ऐसा है, 2B के अंदर दिखने लग जाएगा, दैट डज नॉट मीन कि आप उसका आईटीसी ले ही पाएंगे, ये तो एक एडिशनल कंडीशन है कि 2B में भी दिखना चाहिए, आई रिपीट 2B में भी दिखना चाहिए, दैट डज नॉट मीन कि 2B में दिख रहा है, that indirectly gives you a benefit of availing ITC regardless of the fact whether all other 4 conditions of section 16 subsection 2 are being fulfilled or not, ठीक है? ओके, तो अगला अगेन चैट बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आईटीसी ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड ड्यूरिंग द कैंसिलेशन पीरियड आफ्टर रेस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेदर वी कैन अवेल एंड यूटिलाइज आईटीसी ऑफ अबव इनवॉइस। देखिए साइलेंट स्लाइड सी बात, in 99% of the cases, I repeat, in 99% of the cases, जब आपका रजिस्ट्रेशन रीस्टोर हो रहा है, जब आपका रजिस्ट्रेशन रीस्टोर हो रहा है, it is getting restored from the date at which it was being cancelled, and hence there is no issue in availing the ITC for the limited duration। समझ रहे हैं आप? मतलब से फॉर एग्जांपल कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन बीच में सस्पेंडेड था और वापस वो रीस्टोर हो गया फ्रॉम दैट बैक डेट ओनली, and hence there cannot be any issue with respect to the ITC to be availed, during such period. This is my humble opinion. अगला क्वेश्चन हेमंत जी पूछ रहे हैं, although 2B is updated in March but still goods are received in April, so ITC can be claimed in April only. Fine, okay. Now next point, suppose if goods are received in lots, समझ रहे हैं? ये बात भी आपके पास बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगी, जब एक बिल, एक ही इनवॉइस के गुड्स आपके पास 4 अलग अलग ट्रक्स में आ रहे हैं, राइट? सो व्हेनेवर जो लास्ट कंसाइनमेंट आपके पास रिसीव होगा, जब भी आपके पास लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा, ओनली देन यू कैन अवेल द आईटीसी। सर इनवॉइस किससे मिलता है आपको? इनवॉइस आपको फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट मिलता है या लास्ट वाली मिलता है या बीच में कहीं भी मिल सकता है या कभी भी मिल सकता है या बाद में आता है? प्लीज आंसर ऑन चैट बॉक्स। आपके पास इनवॉइस किस में आता है? आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? सपोज अगर उसी इनवॉइस में जितनी भी इनवॉइसिंग हुई है वो पूरा माल 4 ट्रक में आ रहा है, राइट? तो आपके पास जो इनवॉइस आएगा वो फर्स्ट कंसाइनमेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, लास्ट में आएगा, या किसी में भी आ सकता है, या सब में केवल फोटोकॉपीज ही आएंगी? See, the invoice will be received only in last lot or the last installment. बाकी सब में तो केवल उस इनवॉइस की कॉपी आएगी, and hence you are eligible for the ITC only on the receipt of last installment. समझ रहे? Okay, then इस सेकंड प्रोविजन की बात हम हल्की सी कर चुके थे, अपन थोड़ा सा वापस डिस्कस करते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। Provided further that where a recipient fails to pay, बहुत ध्यान सुनिएगा, where a recipient fails to pay, although इसके नोटिस अभी तक आना चालू नहीं हुए हैं, बट इवेंचुअली जैसे आप डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो आपको कुछ हिंट मिलता है कि इसके नोटिस अब हम इशू करने लगेंगे। क्या बोला जा रहा है? देखिए जरा इसमें, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ रिसिपिएंट फेल्स टू पे। अब जो हमें अटैक करना है ना वो फेल्स टू पे करना।
सी देयर में बी सिचुएशन कि अंकित सोमानी गुड्स खरीद रहा है आपसे, अंकित सोमानी गुड्स खरीद रहा है आपसे विद अ प्री कंडीशन, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि मैं आपको इसका पेमेंट 9 महीने बाद करूंगा, मैं आपको इसका पेमेंट 10 महीने बाद करूंगा, मैं आपको इसका पेमेंट 7 महीने बाद करूंगा, 1 साल बाद करूंगा, व्हाटएवर द केस में। जो गुड्स आपने भेजे पहले मैं उसे यूज करूंगा, देखूंगा प्रॉपर क्वालिटी है कि नहीं, मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद मैं इसका पेमेंट करूंगा। या मैं इसका 30% पेमेंट अभी कर दूंगा, फिर रिमेनिंग 40%, देन रिमेनिंग 30%, व्हाटएवर, वो स्टेजेस में करूंगा। देयर मे बी अगेन अ पॉसिबिलिटी लाइक दिस, समझ रहे? तो उस केस के अंदर जब मेरे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में लिख रखा हूं कि आपको इसका पेमेंट डिलेड ही करना है, whether it will be deemed, whether it will be considered as if I fail to pay, sir, fails to pay by itself fails to pay का मतलब ये है कि मुझे इसका पेमेंट कर देना चाहिए था as per terms of contract, समझ रहे? Now GST law is not going to determine the terms of contract between two independent parties, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इसके नोटिस अभी आने चालू नहीं हुए हैं, ये पॉइंट केवल उन असेसीज के लिए उठ रहा है जो जिनकी जीएसटी ऑडिट डिपार्टमेंट स्टार्ट कर, and hence I find it relevant यहां पर इसको हम जरूर डिस्कस करें, क्योंकि अब डिपार्टमेंट जीएसटी ऑडिट के मोड पर आ चुका है, ठीक है? तो मेरा रेसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ अदर देन सप्लाइज ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, उसमें तो एक्चुअल पेमेंट पहले पेमेंट हो जाता है, द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद टैक्स पेबल दे रहा हूं। देखिए क्या होता है कई बार कि हम सामने वाले को अमाउंट ऑफ इनवॉइस तो दे देते हैं, लेकिन वो नेट टैक्सेबल अमाउंट होता है, नेट टैक्सेबल अमाउंट होता है विदाउट जीएसटी का अमाउंट हम दे देते हैं, और हम उसको ऐसा बोलते हैं जब ये हमारे 2A 2B में दिख जाएगा तब हम रिमेनिंग जीएसटी का अमाउंट भी पेमेंट कर देंगे, समझ रहे? लेकिन इन दिस सेकंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट रिसिपिएंट हैज टू पे कितना अमाउंट टुवर्ड्स वैल्यू सप्लाई अलोंग विद टैक्सेबल दे रहा हूं within a period of 180 days from the date of issue of invoice। अब जो प्रॉब्लम यहाँ पर है ना इस टेक्नोलॉजी में, वो फेल्स टू पे का तो हम तो हमारी तरफ से बोलना ही चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस प्रोविजन में ये वर्ड्स इस तरीके से हैं, विदिन अ पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। इनवॉइस उसी दिन इशू हो गया था, तो डिपार्टमेंट इस फ्रेज को थोड़ा सा ज्यादा पकड़ रहा है। Then an amount equal to ITC availed by the recipient shall be added to his output tax liability। ये भी अगेन बहुत डेंजरस बात है। तो अभी तक हम लोग क्या समझ रहे हैं, अभी तक कई सारे ऐसी चीज को कैसे डील कर रहे हैं, मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे डील कर रहे हैं, पहली बात तो कर ही नहीं रहे ऐसा कोई रिवर्सल, और रिवर्सल कर भी रहे हैं तो आईटीसी रिवर्सल कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आईटीसी रिवर्सल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्शन के अंदर लिखा है इट हैज टू बी एडेड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट देयरऑन। अब ऐसा है देखिए कि इसको आपको आईटीसी रिवर्सल की तरह नहीं करना है सर, हमने तो कहीं तो पढ़ा था आईटीसी रिवर्सल की तरह भी करना है। यस सर, रूल में ऐसा लिख रखा है। तो एट दिस जंक्शन आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड, आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पर द प्रोसीजरल ट्रीटमेंट as given in second provision of section 16 subsection 2 is not matching with rule 37 procedure। ये एक अपने आप में एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, अलग तरह की एक समस्या है, ठीक है? खैर इन टाइम्स टू कम डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम विल आल्सो बी सॉल्व्ड। एनीवेज, तो ये पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं। सपोज द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स पेमेंट आफ्टर 180 days, आई थिंक इट इज अ गुड पॉइंट टू फाइट। सेकंड पॉइंट, व्हाट इफ पेड लेटर, व्हाट इफ पेड लेटर, अगर हमने इसको बाद में चुका दिया तो डेफिनेटली आप जब भी इसको बाद में चुका देंगे तब इसको आपको आईटीसी आप ले पाएंगे। सपोज हमने इसका पार्शियल पेमेंट किया हो तो सर जितना पेमेंट आपने कर दिया उतना आपको आईटीसी मिल जाएगा, जितना आपने पेमेंट नहीं करा उतना आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट इंटरेस्ट परसेंटेज, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट परसेंटेज? तो देखिए इंटरेस्ट परसेंटेज इसमें कितना लगना चाहिए अलोंग विद इंटरेस्ट जो लिखा है, टू माय अंडरस्टैंडिंग इसमें इंटरेस्ट तो 18% ही लगना चाहिए। See, for all practical purposes, section 50 subsection 3 तो एप्लीकेबल ही नहीं है कभी भी। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 तो कभी भी एप्लीकेबल ही नहीं है। आपके पास कभी भी जब भी कभी इंटरेस्ट की चर्चा आएगी तो वो हमेशा 18% ही रह जाएगी, ठीक है? ओके, देन
ये हम पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नॉन पेमेंट विद इन 120 days, वेदर रिवर्सल ऑफ आईटीसी शैल अप्लाई इफ टैक्स इज फुली पेड पर द वैल्यू ऑफ सप्लाई रिमेंस अनपेड. बिल्कुल ठीक है भाई, आपके पास तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ चुकाना था तो ये अप्लाई हो जाएगा. वेदर रिवर्सल ऑफ आईटीसी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट, बिल्कुल हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट के हिसाब से होगा. हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट, ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की तरह जुड़ेगा. इंटरेस्ट अमाउंट 18% के हिसाब से कैलकुलेट होगा. 180 डेज कब से होगा सर? जिस दिन हमने अवेल करा आईटीसी तब से काउंट होना चाहिए. और मैकेनिज्म जो है वो रूल 37 में अलग लिख रखा है, राइट. तो अब एक बात और निकल कर आती है, समझिए जरा, जस्ट अ सेकंड. रूल 37 क्या कहता है? Registered person who has failed to pay shall furnish such details in form GSTR 2. लेकिन GSTR 2 तो अभी तक आया ही नहीं. And hence machinery provisions for the reversal of ITC prescribed under Rule 37 is not applicable, not available, not relevant. आज की डेट में Rule 37 आपके पास चाह कर भी अप्लाई नहीं हो सकता. तो फिर कैसे डील करें उसको, कैसे समझे? तो जरा आप ये देखिए बहुत ध्यान से, एक एपेक्स कोर्ट का जजमेंट ये आपके लिए कई जगह काम में आएगा. सी नॉट ओनली एट दिस प्लेस बट एट मेनी अदर प्लेसेस. ध्यान सुनिएगा. एपेक्स कोर्ट सीआईटी वर्सेस बीसी श्रीनिवास शेट्टी 1981 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है. Wherein it was held that without machinery provision, charging provision shall fail. समझ रहे हैं? ये बात आपके पास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड हेंस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, एक बार वापस दिखाता हूं आपको. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी मतलब जब पेमेंट होना चाहिए टैक्स का, तो एज अ रिसिपिएंट क्या आपके पास कोई भी मैकेनिज्म है ये चेक करने का कि इसका टैक्स पे कर ही दिया है? नहीं सर, इसका कोई आपके पास मैकेनिज्म नहीं अवेलेबल है. तो आपके पास ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, एपेक्स कोर्ट का, सीआईटी वर्सेस बीसी श्रीनिवास शेट्टी 1981 का केस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. टू रिप्लाई टू एनी नोटिसेस, एनी काइंड ऑफ नोटिसेस इशूड टू यू कि इस अमाउंट के ऊपर सप्लायर ने टैक्स नहीं दिया है. वो अमेजिंग. आप जरा समझिए जरा बहुत ध्यान से, इस अमाउंट के ऊपर सप्लायर ने टैक्स नहीं दिया है, इस अमाउंट के ऊपर सप्लायर ने टैक्स नहीं दिया है. ये तो बात बहुत ज्यादा काम की हो गई है. उस हर एक केस के अंदर आप इसका रेफरेंस लिख सकते हैं. सी नॉट ओनली दिस, आपके पास डी वाई बेथिल का केस है, आपके पास डी वाई बेथिल का केस है, राइट. अगेन उसके अंदर, अच्छा ये जो अपन एपेक्स कोर्ट की बात कर रहे थे डेफिनेटली जीएसटी का नहीं होगा, 1981 का केस है. लेकिन डी वाई बेथिल का जो केस है वो तो आपके पास जीएसटी रिजीम का केस है. समझ रहे? वो तो आपके पास जीएसटी रिजीम का केस है. तो अगेन दैट विल बी वेरी वेरी रेलेवेंट. ठीक है, और आपके पास बहुत ज्यादा काम का केस बन जाएगा. देन फर्दर अगर हम इसी के अंदर थोड़ा सा और डिस्कस करें तो आपके पास छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी एक स्टे ऑर्डर दिया है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी आपके पास स्टे ऑर्डर दिया है इसी तरीके के दूसरे कंसेप्ट के लिए. क्या बोला उसमें कि आपके पास अगर कभी भी सप्लायर ने टैक्स नहीं जमा कराया है, कभी भी अगर सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया है तो अगेन दैट इज नॉट अ फॉल्ट, दैट इज नॉट अ फॉल्ट. ठीक है. नॉट ओनली दिस, अपन और अगर आगे समझें तो इसके अंदर भारत एल्यूमिनियम कंपनी, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कहीं चाहे तो आप लिख लें, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. ये आईटीसी आपके 2A में नहीं दिख रहा है, ये आईटीसी आपके 2B में नहीं दिख रहा है, 3B के अंदर आपने अवेल ज्यादा कर लिया है वगैरह वगैरह वगैरह. उसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हैज गिवन द एसएससी स्टे ऑर्डर ऑन डिमांड. तो अगेन दैट इज अ वेरी फेवरेबल जजमेंट. आप चाहे तो कहीं नोट कर लें, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस. अगर आपके पास कोई से भी नोटिस हैं कि ये आईटीसी आपके जीएसटीआर 2A में नहीं दिख रहा है और आपने 3B में अवेल करा है, यस माय फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे नोटिस आपके पास इशू हो रहे हैं. 17-18 के हो रहे हैं, 18-19 के इशू हो रहे हैं. तो उसके अंदर आपके पास ये बहुत बहुत काम आएगा. सिमिलरली मद्रास हाई कोर्ट का आपके जजमेंट है डी वाई बेथिल एंटरप्राइजेस, जो मैं आपको बात कर ही रहा था, वो यहाँ पर फॉलो हुआ है. और उसमें क्या कही गई लाइंस, क्या कही गई जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा. डिफॉल्ट
if made by non-payment of tax by the seller, then recovery shall be made from seller only. I repeat, recovery shall be made from seller only. Recovery जो है वो recipient से नहीं होगी. सर सेलर से ही रिकवरी होगी और रिसिपिएंट से रिकवरी नहीं होगी का मतलब ये है क्योंकि रिसिपिएंट तो ऑलरेडी वो टैक्स अमाउंट सप्लायर को दे चुका है, सप्लायर को ऑलरेडी वो दे चुका है, एंड हेंस देयर कैन नॉट बी डबल रिकवरी फ्रॉम रिसिपिएंट. आई रिपीट, डी बाय बेथल एंटरप्राइजेस, मद्रास हाईकोर्ट का केस है. ये भी आपके पास बहुत ज्यादा काम आएगा. इसके पहले मैंने आपको बताया था भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का केस, वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अंदर आपके पास एक स्टे ऑर्डर मिल गया. ओके, देन फर्दर अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के नोटिसेस जो आपके पास कई सारे ऑलरेडी आने लग गए हैं. सबसे पहला सबमिशन मेरा इसमें कि अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आता है तो सबसे पहले आप इसका जवाब जरूर 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 दें. सी नॉट ओनली फॉर दिस, कोई भी अगर आपके पास नोटिस आता है तो उसे अवॉइड करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, आपको उसका जवाब देना ही है. ये पक्का पक्का से दिमाग में रखिए. जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार ये लाइंस आपके सामने पढ़ रहा हूँ. ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पुराना वाला ही है क्योंकि अभी तक नया वाला जो है वो अब एप्लीकेबल नहीं है. और आपके पास नोटिस तो वैसे भी 17, 18, 18, 19, 19, 20 के तो भी नहीं आने लगे, लेकिन हाँ 17, 18 और 18, 19 के आ रहे हैं. उस केस के अंदर आपके पास पुराने वाला ही अप्लाई करेगा. क्या है जरा देखिए ध्यान से. अ टैक्सेबल पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी, बहुत ध्यान सुनिएगा, शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी, हर एक वर्ड पे जिक्र करूंगा दोबारा, in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September. due date लिखा है यहाँ पे, due date मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ. और अब इस बजट के अंदर ये ड्यू डेट हटा दिया है, अप टू 30th of November कर दिया है. खैर, following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such, ये words हट गए हैं, और such debit note pertains or furnishing of relevant annual return whichever is earlier. ये जो वर्ड जो मैंने काट रखे हैं ऑलरेडी, इनवॉइस रिलेटिंग टू सच, ये फाइनेंस बिल 2020 में ही हट गए थे, राइट. इट हैज बीन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड और ये तो हटाया जा चुका है, कोई खास बात नहीं. अब जरा देखिए जो मैं यहाँ पर आपको रेफर करना चाह रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, जरा वो गौर से सुनिएगा. 17-18 के अगर कोई भी आपके पास नोटिस आते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास 17-18 के कोई भी नोटिस आते हैं तो 17-18 की लॉजिकली जो डेट थी वो ड्यू डेट ऑफ सितंबर थी. तो ड्यू डेट ऑफ सितंबर उस पर्टिकुलर साल में सितंबर 18 की जो ड्यू डेट थी वो 25 अक्टूबर हो गई थी, जिसको फर्दर बढ़ाकर 31 मार्च 19 तक कर दिया था आपके पास आईटीसी लेने के लिए. सर ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ सर, ड्यू डेट ऑफ सितंबर की रिटर्न नहीं बढ़ेगी. ये आपके पास आया था सेकेंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर. आई रिपीट, सेकेंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर was being published, was being announced, was being brought in on 31st of December 2018. I repeat, जरा बहुत ध्यान सुनिएगा. देखिए पहले मैं आपको रिमूवल डिफिकल्टी ऑर्डर क्या है, क्या क्यों आया ये समझाता हूँ. इनिशियल ईयर्स का टाइम था, जीएसटी में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, तो ये सेकंड रिमूवल डिफिकल्टी ऑर्डर आया, बहुत ज्यादा काम का है. क्या बोला, अगर कोई आईटीसी आपके पास जीएसटीआर 2A में विजिबल है, अगर कोई जीएसटीआर 2A में दिख रहा है तो फिर वो आईटीसी आप 31 मार्च 19 तक ले सकते हैं. आई रिपीट, वो आईटीसी आप 31 मार्च 19 तक ले सकते हैं, 2A में दिखना चाहिए. और अगर 2A में नहीं दिख रहा, अगर 2A में नहीं दिख रहा है तो उसकी लास्ट डेट आपके पास 25 अक्टूबर 2018 ही है. ये बात आपके पास बहुत ज्यादा काम आएगी. कहाँ आया ये सेकेंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, किस दिन आया, 31 दिसंबर 2018 को आया. ये बात आपके पास बहुत 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 ज्यादा काम आएगी टू डिफेंड एनी नोटिसेस कि 2A और 3B में डिफरेंस है, वेरिएशन है, ये आईटीसी आपने बाद में लिया, ये लिया, वो लिया, बाद में क्यों लिया, ले ही नहीं सकते थे, सितंबर की ड्यू डेट, सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट जा चुकी है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट. नाउ फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 उसके लिए वही 20 अक्टूबर 19 थी, 1920 के लिए वही 20 अक्टूबर 2020 थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. खैर नोटिस जो है वो अधिकतर अभी तो आपके पास सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के आ रहे हैं, 17-18 रिलेटेड. क्या क्या आपको अपने रिप्लाई में इस नोटिस में देना है, ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए 16.4 दोबारा ऊपर लिख रखा है. अब जरा ध्यान से देखिए, the words mentioned are ITC in respect of any invoice or debit note. ध्यान से देखिएगा, ITC, to take ITC in respect of any invoice or debit note, मैंने ऊपर अंडरलाइन भी कर रखा है. क्या मतलब है इसका,
देखिए अगर कोई आईटीसी आप लेना भूल गए हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर कोई आईटीसी आप लेना भूल गए हैं, देन दिस कैन बी इजीली मैनेज्ड। आप अपने सप्लायर को बोलिए कि भाई ये जो इनवॉइस है ये आप अगले साल में बिल कर लीजिए, ये इनवॉइस आप अगले साल में बिल कर लीजिए। एंड बिलीव मी, फॉर ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कंज्यूमर इज द किंग। अगर ये रिपीट डीलिंग्स वाले क्लाइंट हैं तो डेफिनेटली दिस कैन बी मैनेज्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्लानिंग करी जा सकती है। आप इनवॉइस की डेट जो है वो सामने वाले सप्लायर से लेके चेंज करवा दीजिए। यस, आई डू अग्री, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 की जो टाइम लिमिट थी, आपको इतने टाइम में इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, वो टाइम लिमिट्स आपने फॉलो नहीं करी, तो वो पेनल्टी हम भुगतने को तैयार है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हम अब जो मान लो कि नोटिस आ गया, उससे रिप्लाई में हमें क्या लिखना, हम ये लिखेंगे ITCR इज माई एसेट, ये मेरा सब्सटेंटिव राइट है और ये मेरा एसेट है, एंड दिस एसेट कैन नेवर बी रिफ्यूज्ड बाय गवर्नमेंट। ये मेरी इच्छा है कि मैं कभी भी लूं इस एसेट को, ये एसेट मेरा है। देन हाउ कैन देयर बी एनी टाइम डेडलाइन अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ नेक्स्ट ईयर सितंबर, समझ रहे? देन फर्दर अपन इसी के अंदर और सोचें, अगर 16(4) के नोटिस आते हैं तो देखिए 3B तो रिटर्न ही नहीं थी टिल 9th of October 2019। आप एंड कंपनी का गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन था जिसको ओवररूल करते हुए, जिसको ओवरराइड करते हुए नोटिफिकेशन नंबर 49 आया, एंड व्हिच वाज बीइंग मेड रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल। क्या बोला गया? 1 जुलाई 2017 से बोल दिया गया कि 3B इज अ रिटर्न। तो देखिए ऐसा है कि पहले शुरुआत के टाइम में तो हर बार ऐसा ही था कि GSTR2 हम लाएंगे, GSTR2 हम लाएंगे, GSTR2 हम लाएंगे। और इनिशियली मैं आपको याद दिलाऊं वापस, GSTR 3B वाज जस्ट अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, समझ रहे हैं आप? ऑल ऑफ अ सडन आपके पास GST इंप्लीमेंट हो गया और GSTR2 आ पाएगा नहीं आ पाएगा, GSTR3 कैसे आएगा, क्यों आएगा, पोर्टल ही सपोर्ट नहीं कर रहा, इतना सारा असेसी हो गए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो 3B वाज स्टॉप गैप अरेंजमेंट 2 महीनों के लिए, सिर्फ जुलाई एंड अगस्त 2017 के लिए 3B आया, जो आज तक चल रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि शुरुआत में तो 3B जो है वो रिटर्न ही नहीं थी। आप एंड कंपनी गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन भी रेफर करेंगे, राइट? और इस डिसीजन को ओवरराइड करते हुए नोटिफिकेशन नंबर 49 आया। आई रिपीट, इस डिसीजन को ओवरराइड करते हुए नोटिफिकेशन नंबर 49 आया जो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करा। तो रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी प्रोविजन, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी लॉ, कोई भी रूल केवल तब अप्लाई करता है इन 99% ऑफ द केसेस व्हेन इट इज फेवरेबल टू द assessees। समझ रहे? नॉर्मली any provision, if it is not favorable to the assessee, should not be implemented retrospectively. And definitely if this point raises to higher courts, this is going to be quashed. This notification number 49 for the applicability of GSTR 3B as a return retrospectively is going to be quashed forever. चौथा पॉइंट हम हमारे रिप्लाई में लिखेंगे, GSTR 2 तो अभी तक हटा ही नहीं है। GSTR2 को इम्प्लीमेंट करने की इच्छा अभी भी है सरकार की, and till date also it has been deferred only, and hence automatically the right or my eligibility or my prerogative to avail ITC is also extended automatically per se without any second thought। ये भी आप जरूर अपने रिप्लाई में लिखिएगा। फर्दर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 मुझे क्यों पढ़ना है भाई? मैं तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की बात करूंगा, which starts with non-obstant clause, जो मैंने अभी देखा। उसमें क्या बोला? Not sending anything contained to any other subsection। समझ रहे कि सेक्शन 16 में कुछ भी और लिखा हो, सेक्शन 16 ही आपको देखना है। और सेक्शन 16 के अंदर 4 कंडीशंस हैं जो पिछले बजट से 5 हो गई थी, तो वो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। आई रिपीट, वो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, एंड हेंस there cannot be any need, there cannot be any necessity, there cannot be any compulsory criteria to avail ITC through 16(4). ये आपके पास हर उस नोटिस के अंदर काम आएगा जब भी आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल होके दोबारा रजिस्टर हुआ, ठीक है? देन 6th पॉइंट, ये 6th पॉइंट भी बहुत डेंजरस है, जरा ध्यान सुनिएगा। The words used here are to take ITC। I repeat, the words used here are to take ITC। अब आपके पास है ना ITC के 5 शब्द हैं अलग अलग GST में, एलिजिबिलिटी, एंटाइटलमेंट, अवेलमेंट, यूटिलाइजेशन एंड टेकिंग।
हर एक वर्ड का अलग सिग्निफिकेंस हो सकता है, अलग मीनिंग हो सकता है, कहीं पर कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कहीं पर कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। एलिजिबिलिटी, सुनिएगा ध्यान से। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी वर्ड का क्या मतलब है? आप ये आईटीसी अवेल कर सकते हैं, आप ये आईटीसी अवेल कर सकते हैं, आपका अधिकार बनेगा, ठीक है। एंटाइटलमेंट और एलिजिबिलिटी को करीब करीब सेम माना जा सकता है। अवेलमेंट, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अवेलमेंट वर्ड इज टू बी कंस्ट्रूड टू अवेल्ड इन 3B। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, जहां भी कहीं 3B का रेफरेंस है वहां पर हर बार जो वर्ड्स यूज हुए वो अवेलमेंट यूज हुए या अवेल्ड इन 3B वर्ड यूज हुआ। सर कहां पे? सर रूल्स में हर जगह है। आपके पास जब भी GSTR 9 का जिक्र आया तब उसमें हर जगह है। कोई भी क्लैरिफिकेशन आया हर में उस जगह आपके पास अवेलमेंट इन 3B की बात करिए, राइट। तो सो द वर्ड अवेलमेंट इज टू बी कंस्ट्रूड ओनली फॉर 3B, ठीक है। तो 3B के लिए मुझे सिर्फ अवेलमेंट शब्द देखना है। नेक्स्ट वर्ड इज यूटिलाइजेशन। ये जो आईटीसी है ये मुझे किस तरीके से यूटिलाइज करना है, पहले आईजीएसटी यूज करना है, पहले जीएसटी करना है, वगैरह वगैरह, वो हम सब लोग जानते हैं। रूल 86A 86B की अपन बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अपन बात यहाँ पर नहीं कर रहे। टेक, ध्यान सुनिएगा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो वर्ड है वो टेक आईटीसी है। मैंने आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ शुरुआत का एक्सटेंट आपके लिख रखा है, आपके रेफरेंस के लिए अगर आप पूरा देखना चाहें तो a taxable person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice। अब टेक जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? सर इट इज नो वे डिफाइंड, इट इज नो वे डिफाइंड, बट यस अंडर एक्साइज लॉज द वर्ड टेक मींस एज पर बुक्स, टेकिंग एज पर बुक्स, टेकन एज पर बुक्स, टू बी टेकन एज पर बुक्स। तो अब जरा आप ध्यान से देखिए, a taxable person shall not be entitled to take ITC, तो टेक आईटीसी का मतलब टू बी टेकन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और आपके पास जो नोटिस आ रहे हैं वो आ रहे हैं टू बी टेकन इन 3B के नाम से। सर टेकन तो है ही नहीं, 3B के अंदर तो वर्ड ही अवेलमेंट होना चाहिए, राइट। यस आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज द केस ऑफ एरर इन ड्राफ्टिंग, बट एज एन असेसी, एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें उस बेनिफिट को, रीडिंग बिटवीन द लाइंस को यूज करना ही चाहिए, राइट। और अगर आपके पास कोई बड़ा मैटर है तो उसको जरूर आप यूज करें, बोलिएगा ये बात जरूर। ऑल्दो दिस इज वेरी डिफिकल्ट कंटेंशन टू बी प्रूव टू असेसिंग ऑफिसर एज वेल, ठीक है। इट मींस आईटीसी टू बी टेकन इन बुक्स एंड हेंस वेस्टेड राइट टू अवेल इन जीएसटी रिटर्न्स। मतलब ये टेकन जो शब्द है, टेकन जो शब्द है इसका मतलब तो टेकन एज पर बुक्स है। अवेलमेंट शब्द होता तो अवेलमेंट इन 3B की चर्चा होती, ठीक है। सेक्शन 38 to 41 डील्स विद आईटीसी टू बी टेकन इन रिटर्न और टू बी अवेल्ड इन रिटर्न। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर जो टेकन शब्द है उसका मतलब, उसका रेफरेंस तो हम केवल टेकन इन बुक्स ऑफ अकाउंट से लेंगे। ये जो पॉइंट है ना, ये आपके पास बहुत ज्यादा काम आएगा आरसीएम के केस में। अभी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रॉयल्टी के ऊपर आरसीएम की कहानी स्टार्ट हो गई है एंड एन नंबर ऑफ एन ब्लॉक नोटिसेस आर बीइंग इशूड टू एवरी माइन होल्डर और लीज होल्डर, माइनिंग लीज होल्डर, समझ रहे हैं आप। उसको हर एक को नोटिस दे दिया कि कितनी कितनी रॉयल्टी आप पे करते थे। सुनिएगा ध्यान से, कितनी कितनी रॉयल्टी का आप पेमेंट करते थे, उसके ऊपर आपने आरसीएम की लायबिलिटी का पेमेंट करा कि नहीं करा, माइनिंग रॉयल्टी के ऊपर आपने उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आपने पेमेंट करा कि नहीं करा, समझ रहे हैं। और जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आपको ये भी कहते हैं मिल जाएंगे कि ये जो पिटीशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गई, इट हैज बीन डिस्मिस्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो प्लीज let them understand this, you have to explain this. Supreme Court has not dismissed the petitions on merits, I repeat, Supreme Court ने petition dismiss नहीं करी on merits। उन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो एक जो पॉइंट है ये सुप्रीम कोर्ट में लाने की जगह आप हाई कोर्ट्स में जाएं। I repeat, what it indirectly means is instead of raising this issue directly अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, उसकी जगह आपको इसे आर्टिकल 226 में रिट पिटीशन अप्लाई करने की, जो कि हाई कोर्ट में लगती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जीएसटी आरसीएम इशू ऑन माइनिंग रॉयल्टी की बात कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपके बहुत काम आएगा, जरा सुनिएगा।
ये जो उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का केस है, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोल रहा है, क्या कंसेप्ट है? सी द कंसेप्ट ऑफ द मैटर ऑफ उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिगार्डिंग सर्विस टैक्स has been still pending at Supreme Court with stay order decisions of Rajasthan High Court. समझ रहे हैं आप? स्टे ऑर्डर लगा दिया है राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन पर. राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या बोला? वो उन्होंने बोला टू लेवी द सर्विस टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस ओनली. लेकिन अगर उस डिसीजन के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में, दैट इनडायरेक्टली मींस दैट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट considering it justified to apply RCM as service tax liability on mining royalty, and the same applies even on GST portion. Moreover, हम हमारे रिप्लाई में ये भी लिखें, रॉयल्टी इज अ टैक्स. रॉयल्टी तो अपने आप में टैक्स है भाई, और ये टैक्स है कि नहीं, ये तो अपने आप में ही 9 जज बेंच में पेंडिंग है इन सुप्रीम कोर्ट. आई रिपीट, वेदर royalty is a tax or not, because in case it is being established that royalty is a tax, then there cannot be any GST element on tax element. समझ रहे हैं आप? तो कोई पॉइंट ही नहीं है. तो आप ये मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कहीं नोट कर ले. मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस है सुप्रीम कोर्ट में, 9 जज बेंच के पास पेंडिंग चल रहा है. Till the matter is decided, सुनिए ध्यान से, till the matter is decided, it cannot be said, it cannot be determined, or it cannot be clearly said that there will be GST on such royalty on RCM basis. Not only this, एक पॉइंट और भी है. जितने भी नोटिस आ रहे हैं, जितने भी नोटिस, वो सब 18% की रेट पे आ रहे हैं. आई रिपीट, जितने भी आपके पास नोटिस आ रहे हैं वो सब 18% की GST रेट पर आ रहे हैं. सर आपके पास इस केस में एक पॉइंट तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है कि आपके पास कभी भी वो जो रॉयल्टी का अमाउंट है, वो जो लाइबिलिटी पोर्शन है, दैट कैन नॉट एक्सीड द रेट एट विच गुड्स आर बीइंग टैक्सेबल. नाउ इन मेनी केसेस से फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ कोटा स्टोन, जो प्रोडक्ट है वो 5% की रेट पे टैक्सेबल है, तो भाई रॉयल्टी के ऊपर आपको 18% क्यों देना? समझ रहे हैं आप? तो ये ऐसे बहुत सारे इश्यूज आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, DMFT की अगर अपन बात करें, DMFT, तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं दैट सच अमाउंट इज पेड टू ट्रस्ट. समझ रहे हैं आप? DMFT अमाउंट इज पेड टू ट्रस्ट एंड हेंस इट डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. समझ रहे हैं? इट डज नॉट टेंड अमाउंट टू बी पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. और इस कारण से if this portion is not paid to state government or central government, then there cannot be any liability arising on account of RCM basis. और अगर अपन इसी में बात करें फर्दर, तो क्या है इनिशियल टाइम पीरियड के अंदर, मतलब अगर मैं बात करूं आपके पास जुलाई 17 से करीब आप ऐसा मानिए जून 18 तक, जुलाई 17 से जून 18 तक, तो जो वहां पर कॉन्ट्रैक्टर था, जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था रॉयल्टी रिसीव करने का आपसे और फिर वो सरकार को जमा कराता था, he has charged GST amount from you. तो सेम सप्लाई के ऊपर दो बार तो टैक्स लग ही नहीं सकता. आप ये भी जरूर करिए, आप उस समय की 17-18 वाले पोर्शन की और अप टू जून 18 वाले पोर्शन की आप अपने रॉयल्टी की स्लिप्स देखिए, उसमें GST अमाउंट लिख रखा है. अगर लिख रखा है तो उस वाले पोर्शन का आपको GST RC लायबिलिटी नहीं पे ऑफ करनी. और अपन इसमें फर्दर बात करें, 17-18 तो फ्री हो गया, इवन जून 18 तक फ्री हो गया. अपन इसमें और फर्दर अगर बात करें, जो रिमेनिंग पोर्शन है, क्यों नहीं उस अमाउंट की रॉयल्टी के ऊपर, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, हम उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आज पेमेंट कर दें. आई रिपीट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम उसका पेमेंट आज कर दें, एंड देन वी अवेल द ITC. आज कर दें सर, कैसे कर दें? आज सर हम उसे 3B में कर दें, आज हम उसका पेमेंट 3B में कर दें, जस्ट लाइक इट इज अ केस ऑफ करंट पीरियड RCM लायबिलिटी व्हिच इज पेड नाउ एंड हेंस ITC इज बीइंग अवेल्ड. सर ऐसे कैसे हो जाएगा? आप मुझे बताइए, कौन से लॉ में, कहां पर, किस प्रोविजन में, किस रूल में ऐसा लिख रखा है कि आप ये ITC पिछले सालों का अब नहीं ले सकते? सर 16(4) में. तो 16(4) को तो ब्रेक करने के लिए ये 6 पॉइंट बताए आपको सामने.
सर 16(4) के नोटिस का रिप्लाई में जो पॉइंट जाएंगे वो ही ये भी तो बनेगा। मोर ओवर सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए 16(4) एक बार वापस दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ध्यान सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आप, क्योंकि इसके नोटिस एकदम हॉटकेक्स की तरह आ रहे हैं। A taxable person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note. क्या लिखा है? ITC in respect of any invoice or debit note. आप मुझे ये बताएं, ध्यान सुनिएगा, What do you mean by the word invoice? सर जीएसटी के टेक्स्ट में, जीएसटी के कंटेक्स्ट में इनवॉइस का मतलब क्या होगा? और वो भी वहां पर जहां पर आरसी का केस है वो क्या होगा? सर वहां पर कंसेप्ट लाया होगा सेल्फ इनवॉइसिंग। ओहो, अभी आज ही ये अपन ने बात करी थी सर, आज ही अपन ने ये बात करी थी, करीब 1.25 घंटे पहले। क्या बोला था मैंने? हर एक को सेक्शन 31(3)(f) के अकॉर्डिंग सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना जरूरी है अगर कोई आरसीएम है तो। यस, नाउ आई एम कमिंग टू द राइट पॉइंट। उस समय क्यों बोला, उसका लिंकेज देखिए। अभी अगर इस लाइबिलिटी को मैं आज पे ऑफ करूं, अगर इस लाइबिलिटी को मैं आज पे ऑफ करता हूं, and if I generate self invoice today, then even my right, even my eligibility, even my power, even my prerogative to avail ITC in 3B also starts from today. क्यों? क्योंकि सेल्फ इनवॉइस मैंने आज बनाया, इस बात को आप जरूर लाइए इन फ्रंट ऑफ डिपार्टमेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, राइट। गोइंग फर्दर, इसी के अंदर अगर अपन थोड़ा सा और जिक्र करें तो सर देखिए ऐसा है कि सेल्फ इनवॉइस आपने जो लेट बनाया है, इसकी लेट फीस पे कर देंगे सर। इसकी लेट फीस का मतलब है कि इसकी लेट फीस का अमाउंट, लाइबिलिटी, पेनल्टी कहीं लिखी हुई नहीं, तो जिसके लिए कुछ नहीं लिखा उसके लिए ब्लैंकेट 25,000 प्लस 25,000 50,000 की लाइबिलिटी पेमेंट करनी है, वो कर देंगे। अब आगे एक क्वेश्चन चैट बॉक्स के ऊपर आया, बट सर सेल्फ इनवॉइस इज फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर यहां पर रॉयल्टी वाले केस के अंदर क्या सामने वाला आदमी रजिस्टर्ड था जो चार्ज कर रहा था आपसे रॉयल्टी? अगर वो चार्ज कर रहा था और रजिस्टर्ड था तो वैसे जीएसटी से चार्ज किया है, जब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ही तो यही है आरसीएम वाले केस के अंदर हमेशा ही, कि सामने वाला आदमी हमेशा ही अनरजिस्टर्ड है, बी इट सेक्शन 9(3) और 9(4). समझ रहे हैं कि सामने वाला आदमी तो अनरजिस्टर्ड ही है। इसमें हालांकि एक कोई इंपॉर्टेंट चेंज की चर्चा हम करेंगे थोड़ा सा, अगर एंड में टाइम परमिट करेगा तो। जो इंपॉर्टेंट चेंज अभी रेस्टोरेंट या आपके पास कोई भी ऐसे फूड आउटलेट्स के लिए आया है, अगर उनके कोई भी गुड्स से फॉर एग्जांपल जोमेटो और स्विगी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं या उनके थ्रू सप्लाई होते हैं, तो विचार करेंगे अपन, उसका टाइम मिलेगा तो। ओके खैर, तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि वो जो आरसीएम की लाइबिलिटी थी वो आप आज पे ऑफ करके भी उसका आज आईटीसी ले सकते हैं लीगली। डेफिनेटली डिबेटेबल पॉइंट है। नोटिस आएंगे और ये नोटिस बहुत लंबे टाइम तक आपको लड़ने भी पड़ेंगे, एटलीस्ट टिल सेकेंड एपिलेट तक तो ये बात जाएगी ही जाएगी। मतलब ये पॉइंट आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको भले ही ना जाना हो हाईकोर्ट, कोई ना कोई आपके स्टेट से दूसरे स्टेट से हाईकोर्ट में जा चुके हैं सर, ऑलरेडी रिट पिटिशंस आर पेंडिंग, समझ रहे, तो उनका रिजल्ट आते ही जो संसार में सबके साथ होगा वो होगा। दूसरी बात, अगर किसी असेसी को ऐसा लगता है कि यार हमें ये सब लफड़े में नहीं पड़ना, आप जमा करा दो सर, तो भी उसे एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस दीजिए आप सभी लोग कि सर वो पेड अंडर प्रोटेस्ट बताइए, साथ में कवरिंग लेटर बनाइए, उस कवरिंग लेटर में भी अगेन लिखिए पेड अंडर प्रोटेस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड, समझ रहे, ताकि इन केस उस असेसी का उस पर्टिकुलर कंटेंशन से, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से, उस पर्टिकुलर इशू पे अगर हाई कोर्ट फेवरेबल डिसीजन बाद में दे देती है तो कम से कम रिफंड की पॉसिबिलिटी तो बने, राइट। तो पेड अंडर प्रोटेस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड ये जरूर लिखिए। गोइंग फर्दर, जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, आई थिंक ये एक सेटल्ड कंसेप्ट था सर्विस टैक्स में। किसी टाइम पर हाफ ऑफ द राजस्थान में इसके नोटिस काफी आए थे, बीच में बंद हो गए थे,
वापस ये आने स्टार्ट हो गए हैं एमपी में, वापस ये आने स्टार्ट हो गए हैं यूपी पार्ट में, समझ रहे हैं? तो मैंने उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये कंसिडर करा है। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 क्या कहता है? आरसीएम के ऊपर जो था, आरसीएम ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोल रहा है ये? सर रेंटिंग की कोई सर्विस हो, कमीशन की कोई सर्विस हो, सिटिंग फीस की कोई सर्विस हो, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एडवाइस अगर आपने किसी भी डायरेक्टर ने अगर दी है कंपनी को, देन there would be applicability of RCM on these kind of services. समझ रहे? RCM on services supplied by a director of a company or a body corporate. हल्का सा इशू है। डिपार्टमेंट कह रहा है इन सब के ऊपर एप्लीकेबल है, डिपार्टमेंट कह रहा है इन सब के ऊपर एप्लीकेबल है। सर मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? आप जरा देखिए, अगर रेंटिंग सर्विस का पार्ट हुई है, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर रेंटिंग सर्विसेज डायरेक्टर ने दिए, कैसा होता है? क्या होगा? ऐसे कैसे होगा? सर 100% केस में ऐसा ही होता है। इनिशियली जब भी कंपनी बनती है, सुनिएगा ध्यान से, तो रजिस्टर्ड ऑफिस तो किसी न किसी डायरेक्टर का घर बता देते हैं, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनिशियली आप कोई ना कोई रेंटल अमाउंट तो पेमेंट करते ही हैं डायरेक्टर को, प्रैक्टिकली। सिमिलरली अगर आप किसी डायरेक्टर को कमीशन पेमेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एडवाइस के लिए अगर कुछ पेमेंट करते हैं, तो ऐसे कोई भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो दोस पेमेंट्स आर नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। आई रिपीट, those payments are not in the capacity of director. जैसे रेंटल सर्विसेज का अगर आपने पेमेंट करा तो वो इन द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड है वो। सिमिलरली अगर वो कोई कमीशन अगर हमने उसको पेमेंट करा तो इन द नेचर ऑफ वो कमीशन एजेंट है, समझ रहे हैं आप? इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एडवाइस है तो वो कोई ना कोई प्रोफेशनल है। इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर हम उससे पेमेंट नहीं करते। इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर हमने उसका पेमेंट सिर्फ सिटिंग फीस का करा है सर। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है और आपके रिप्लाई में ये बात जानी चाहिए। सिमिलरली क्या अगर इसको आरसीएम में कवर करना है तो क्या 20 लाख की लिमिट देखी जाएगी? नहीं देखी जाएगी सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवर्स एडवांस रूलिंग है इसके अगेंस्ट में दूं, पर आपके कर्नाटका की AAR रूलिंग है अपने फेवर में। डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया क्या है अपने रिप्लाई में आपके पास लिखने के लिए? डायरेक्टर इज ऑलवेज एन एम्प्लॉय। प्रूव कैसे होगा सर? 192 में आपने टीडीएस काटा हुआ है, उससे जो भी सैलरी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपनी लॉ की डेफिनेशन में डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने हर बार जब भी MGT7 भरा, आई रिपीट MGT7 भरते हैं ना कंपनी के केस में, अरे यार वो तो कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। कोई बात नहीं सर, MGT7 जब भी भर रहे हैं आप कंपनी सेक्रेटरी ने भरा, उसकी कॉपी उससे लीजिए। उसमें लिखा है कि वो आपके पास फुल टाइम है, पार्ट टाइम डायरेक्टर नहीं है। फुल टाइम जब भी है तब वो हमेशा ही एम्प्लॉय ही है। देन फर्दर एक एग्रीमेंट ऑफ सर्विस जरूर बना लीजिए, एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बना लीजिए आप। देन वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही है, ये भी आपने MGT7 में मेंशन कर रखा है। अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो अगेन ही इज कंसीडर्ड एज एन एम्प्लॉय। उसके ऊपर ESI PF की प्रोविजंस, TDS की प्रोविजंस हमने अप्लाई करे ही हैं। प्रॉब्लम एक और, ये दो एडवर्स एडवांस लिंक्स तो है ही, क्लेक्राफ्ट इंडिया की और एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियर्स की, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। ब्रह्मा ऑनर्स का केस है कोलकाता स्टेट का। अगर वो एम्प्लॉय था और आपने इसको जो जो पेमेंट करे एज सैलरी, तो आपने मंथली पेमेंट तो करे ही नहीं सर। तो क्या हो गया, हमने उसकी कम से कम एंट्री तो पास करी हर महीने, समझ रहे? हमने हर महीने उसकी एंट्री तो पास करी, पेमेंट हो चाहे नहीं हो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये अमाउंट अल्टीमेटली उसके अकाउंट में अक्यूमुलेट होकर और अनसिक्योर्ड लोन की तरह चल रहा है, और उस अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर हम उससे इंटरेस्ट भी पेमेंट करते हैं। तो फिर आपके रिप्लाई में ये बात होनी चाहिए। क्या इसका आरसीएम हम आज जमा करा दें और इसका क्रेडिट ले लें? सर टू माई अंडरस्टैंडिंग में 17, 18, 18, 19, 19, 20 कोई से भी साल की बात करें, क्या इसका आरसीएम आज जमा करा दें? नहीं सर, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये किसी भी केस में आरसीएम की कैटेगरी में फॉल ही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सिटिंग फीस का कंसेप्ट फॉल होता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि सिटिंग फीस देने वाली प्राइवेट लिमिटेड्स 1% भी है, ठीक है? अगर हम कोई एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे रहे हैं तो देखिए, ऐसा कंसेप्ट ये इसलिए आया, क्या इसका हम आज पेमेंट करके आज क्रेडिट ले लें? सर क्रेडिट मिल तो सकता है, लेकिन अगर आप एग्जाम सर्विस दे रहे हो तो नहीं मिलेगा। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि आपको नहीं करना चाहिए सर। क्या कंपनी को इसके अगेंस्ट में इसके लिए इसके वजह से AAR लगानी चाहिए? मेरे ख्याल से उसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको इसके बारे में कोई ना कोई न्यूज मिल जाए कि डिपार्टमेंट से आपके पास इस बारे में कोई मैटर उठ रहा है, ठीक है? कुछ और इश्यूज की अगर अपन बात करें तो रॉयल्टी ऑन माइंस हमने एकदम डिटेल में डिस्कस कर लिया है और मैंने कई सारे पॉइंट आपको इसमें बता दिए।
दूसरा जो कोई एक मेजर इशू है वो है आईटीसी ऑन बायोडीजल या आईटीसी ऑन फ्यूल ऑयल या आईटीसी ऑन पैराफिन ऑयल। ये ट्रांसपोर्टर्स के केस में है। आई बिलीव मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, बट स्टिल थोड़ा सा मैं इस बारे में आपको बताऊं। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि पेट्रोल डीजल ये जीएसटी के परिधि में नहीं है, बट सर इससे एक अलाइड प्रोडक्ट है। वो क्या है? वो बायोडीजल है, वो फ्यूल ऑयल है, वो बेस ऑयल है, वो पैराफिन ऑयल है। समझ रहे? बेसिकली ये सारे के सारे HSN कोड 2710 वाले कोड के हैं। डेफिनेटली 8 डिजिट्स है, लेकिन ये इनिशियल जो इनके जो 4 डिजिट्स है वो 2710 है। 2710 वाली कैटेगरी के HSN कोड वाले हैं। ये जो है बायोडीजल हो, चाहे फ्यूल ऑयल हो, चाहे बेस ऑयल हो, पैराफिन ऑयल हो, ये सब जीएसटी के एम्बिट में है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, मैं कोई 1, 2, 5, 10 ट्रांसपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा, 100% ट्रांसपोर्टर्स इंडस्ट्री में सारे के सारे लोग ये बायोडीजल को, फ्यूल ऑयल को, बेस ऑयल को, पैराफिन ऑयल को यूज कर रहे हैं और इसका आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। पॉइंट इसकी इसका आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। अब जरा आप मेरी बात गौर सुनिएगा, क्यों यूज कर रहे हैं सर ये? तो पहली बात तो है कि जीएसटी के परिव्यू में है तो इसका आईटीसी मिल रहा है। दूसरी बात, ये फ्यूल ऑयल या बायोडीजल जो है, बेस ऑयल जो है, ये आपके पास कंपैरेटिवली डीजल से लेस एक्सपेंसिव भी है। मतलब पिछले 2 साल 3 साल के अंदर ये 50 रुपीज से लेकर 74 रुपीज तक, 84 रुपीज तक बल्कि रोटेट हुआ है। और डीजल तो आज की डेट पे से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए पर होगा, राइट? तो इन एनी केस ये सस्ता भी है और इसका आईटीसी भी मिल रहा है 18% की रेट पर। तो पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को टारगेट बनाकर, पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को इस केस में टारगेट बनाकर, और ये बायोडीजल वाले इशू के लिए, फ्यूल ऑयल वाले इशू के लिए यहाँ पर डील करा है और यहाँ पर इसके अगेंस्ट में केसेस बनाए गए। क्या बोल रहे हैं डिपार्टमेंट, जरा सुनिएगा। डिपार्टमेंट ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये कोई सा भी ऑयल हो 2710 वाला, originally it was being permitted to be used only for industrial use. I repeat, it was to be used only for the purpose of industrial use, right? और industrial use के तो काम में ही नहीं आ रहा, ये ट्रांसपोर्टेशन ने यूज किया ना, ट्रांसपोर्टर ने यूज करा, तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए तो काम में ही नहीं आया, तो आपको इसका आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। देखिए ऐसा है, मैंने अगर ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री अगर नॉन कंप्लाई करी तो उस एक्ट की पेनल्टी में भुगतने को तैयार हूं। सुनिए ध्यान से, उस एक्ट की पेनल्टी में भुगतने को तैयार हूं, बट जीएसटी केस में इसका आईटीसी मुझे मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैंने 16 सबसेक्शन 2 की चारों कंडीशंस फुलफिल कर दी। इनफैक्ट 16(4) का पॉइंट भी नहीं, मैंने तो टाइमली भी ले ली। नॉट ओनली दिस, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो कि ब्लॉक क्रेडिट को डील करता है, वो कहीं भी उसके अंदर इस ब्लॉक क्रेडिट का जिक्र भी नहीं, इस ब्लॉक क्रेडिट का उसमें जिक्र भी नहीं है। तो फिर इसमें अगेन कोई इशू नहीं होना चाहिए। इस बात को आप अपने डिटेल्ड रिप्लाई में दो, एंड बिलीव मी दिस विल बी डेफिनेटली फेवरेबल। डिपार्टमेंट आपको ये भी कह सकता है कि हर एक चीज लिखी नहीं होती, इसका अगर नहीं लिखा तो क्या आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा, ये तो लॉ में परमिसिबल ही नहीं था, ये तो एक्ट में डलने से रह गया था। तो सर एक्ट में अब तक जीएसटी जब से इंप्लीमेंट हुआ है, पिछले 5 साल करीब मान लेते हैं, 4.5 साल मान लेते हैं, उसमें 2200-2300 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो 2300 अमेंडमेंट्स के बाद भी अगर आपको ये बात याद नहीं आ रही है, देन दैट मीन्स देयर कैन नॉट बी एनी हिडन इंटेंशन फॉर दिस टू बी एज पार्ट ऑफ एक्ट। समझ रहे? कोई नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर, कहीं भी इसका कोई रेफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, देयर कैन नॉट बी अ कंडीशन which can be self imposed by the assessing officer कि आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। And believe me, this is definitely a debatable point. This is definitely a point to be fought upon. ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के लिए, मतलब आप ऐसा मानिए, this has proved a boon to them. Otherwise, अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, there cannot be any transporter who is not using this biodiesel. ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट जो और निकल कर आता है, जो एक और निकल कर आता है, वो है परमिट फीस के ऊपर। देखिए ऐसा है, परमिट फीस उन सब ट्रांसपोर्टर्स को लेनी पड़ती है
जो भी दूसरे स्टेट तक ट्रेवल करते हैं तो नॉर्मली ट्रांसपोर्टर्स उनके जो ट्रक हैं दूसरे स्टेट जाते ही हैं, तो उनको हर बार एक परमिट फीस लेनी ही पड़ती है, परमिट फीस उनको पेमेंट करनी ही पड़ती है। तो सच परमिट फीस अभी तक उस पर कोई जीएसटी की चर्चा थी ही नहीं। लेकिन हुआ क्या फ्रेंड्स, 30 सितंबर 2021, आई रिपीट 30 सितंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन आया कि अब से परमिट फीस के ऊपर जीएसटी नहीं है, अब से परमिट फीस पर जीएसटी नहीं है, राइट। तो ऑल ऑफ अ सडन डिपार्टमेंट के पास ये एक नोटिस गया कि इसका मतलब अब तक था, तो आपको इसको रिसीव करना है और इसके ऊपर आरसीएम लायबिलिटी आपको जमा करवानी है, इसके ऊपर आरसीएम लायबिलिटी आपको जमा करवानी है। अब मैं बात कब की कर रहा हूँ, 17-18 पीरियड की, 18-19 वाले पीरियड की, 19-20 वाले पीरियड की, और 20-21 वाले पीरियड की, 21-22 के अंदर भी अप टू सितंबर की। सितंबर के बाद का तो इशू है ही। तो क्या वो आईटीसी आज जमा करा के आरसीएम में हम पेमेंट कर लें और इसका आईटीसी आज ले लें? सर वही जो पॉइंट्स अपन ने 16 में डिस्कस करे थे वो सेम पॉइंट्स है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल बात और है, आप कहीं चाहे तो नोट कर लें। सर एक एंट्री नंबर 47 है, आई रिपीट एक एंट्री नंबर 47 है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सीटीआर फर्स्ट डे को ही था, है ना। एंट्री नंबर 47 क्या कहती है वो एंट्री नंबर 47, जरा बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं लाइन पढ़ रहा हूँ उसकी। कोई भी सर्विस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर देती है, किस चीज के लिए? फॉर एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। नाउ टेल मी व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ परमिट? परमिट फीस क्या चीज का है? सर परमिट फीस क्या कंसेप्ट है कि एक तरीके से ये रजिस्ट्रेशन ही है, जो आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो आपने पे करे, सो दैट नाउ यू कैन ट्रेवल टू डिफरेंट स्टेट्स, राइट। अगर आप परमिट फीस को सिंपल गूगल भी करके देखते हैं तो भी इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम से आपको मिल जाएगा, राइट। तो अब ये इसको रजिस्टर क्यों करना जरूरी है? सर एज पर मोटर व्हीकल एक्ट एवरी ट्रांसपोर्टर हैज टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड एंड हेंस it will be classified as under compulsory registration as well. It will be classified as under compulsory registration. आप लोग चाहें तो सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 39 के आसपास तक ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट कंसिडर कर सकते हैं, and as per that act such kind of registration is mandatory and hence to my understanding definitely debatable as per this entry number 47 in notification number 12/2017 जो 28 जून 2017 को ही आ गया था, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपके पास इस परमिट फीस के ऊपर आरसीएम लायबिलिटी भी नहीं आएगी, राइट। आई वाज बीइंग एडवाइज्ड, आई वाज बीइंग गाइडेड कि आपको मेंबर्स से एंड में 15-20 मिनट का समय आप जरूर रखिएगा फॉर एनी ओपन क्वेरी सेशन। पूजा मैडम, धवल सर। Yes, sir. Yes, sir. I request all the members, if you have any queries or questions related to the topic, you can. Would they be required to raise the hands, madam, or? Yes, either you can raise your hands or you can comment in the chat box. Akshay sir or Mahbub sir, they will unmute. Sir, someone has messaged in the text box. अच्छा है, क्वेरी रिलेटेड टू आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। हाँ सुरभि जी, इनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। एक मेरे पास एक क्वेश्चन और है, अभिषेक मैशन जी। वन क्लाइंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड ऑन 8 February 2022, 8 फरवरी 2022 and registered on 5th March 2022. As per 2B, those invoices which issued in this period ITC not available, showing the reason due to registration cancelled in this period. What can we do for this period? Sir, definitely ये point थोड़ा सा problem create करेगा आपको, और इस point के अंदर जब मतलब आपके पास जब restoration हुआ तो पुराने टाइम से नहीं हुआ, ये जरूर एक इशू आपके पास बन गया। Yes, I believe there will be some issue, but still आपके पास 16 सबसेक्शन 2 जो विचार कंडीशन थी फुलफिल हो रही हैं। तो सिर्फ ये क्योंकि 2A में विजिबल नहीं है, तो जो अपन ने 2A वर्सेस 3B के पॉइंट्स डिस्कस करे थे, तो पॉइंट्स आप यहाँ पर दोबारा इजीली कंसीडर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक कृपाल जी ने क्वेश्चन लिखा है, इफ वी पे द अमाउंट आफ्टर 180 days, our failure to pay, then we can we avail the ITC and just pay the interest even though we have not reversed it?
I think we have to follow the procedure as per law, and we have to first consider same as output tax liability, and only after payment you can get the ITC again. इसको आप डायरेक्टली नेट ऑफ कर लें, ऐसा शायद पॉसिबिलिटी नहीं होगी. Any other question? Sir, excuse me, am I audible? GST and restaurant, e-commerce operator has to charge and reverse charge. बिल्कुल भी Sir, am I audible? मैंने इसका डिस्कशन किया था कि हाँ अगर टाइम परमिट करेगा तो हम ये बात जरूर डिस्कस करेंगे. देखिए, नाउ देयर इज एन इम्पोर्टेंट चेंज. ये एक इम्पोर्टेंट चेंज आपके पास आ गया है. अगर कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी फूड सप्लायर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, आई रिपीट, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर अपनी सप्लाई करता है, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाई करता है, देन इन ऑल सच केसेस सच restaurant owner is not required to pay the GST on the same. I repeat, अगर कोई भी ऐसा केस है जिसके अंदर कोई भी सिर्फ फॉर एग्जांपल अपन डोमिनोज की बात करें, डोमिनोज के जो पिज्जा हैं वो अब आपके पास किसी ना किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जोमेटो के थ्रू, स्विगी के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, तो उस केस में अब उसकी जीएसटी लाइबिलिटी, आई रिपीट, अब उसकी जीएसटी लाइबिलिटी कभी भी रेस्टोरेंट वाले को खुद को नहीं पेमेंट करनी है. एंड इन ऑल सच केसेस उसमें वो लाइबिलिटी हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर की ही आती है. फर्दर अपन इसके अंदर और बात करें तो अब इसे रेस्टोरेंट वाले को अपनी खुद के रिटर्न्स में किस तरीके से शो करना. सी, इसके लिए भी एक सर्कुलर आया और एक क्लैरिफिकेशन गाइडलाइंस आई that it has to be shown as exempted supply. I agree that it is perfectly wrong, but it has been guided by the department itself कि आप इसे exempted supply की तरह शो करें और इसे GSTR 3B में टेबल नंबर 3.1.C में शो करें. I repeat, GSTR 3B में टेबल नंबर 3.1.C में शो करें और GSTR 1 में इसे आप टेबल नंबर 8 में शो करें. GSTR 1 में आप इसे टेबल नंबर 8 में शो करें. ठीक है. बोल रही फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड एंड इट्स रेस्टोरेशन. अभिजीत जी, क्वेश्चन इज नॉट वेरी क्लियर. सर मेरा एक क्वेश्चन था सर. सर, जब क्रॉस चार्ज इनवॉइसिंग होगा उसमें एसएससी और एचएसएन क्या रहेगा? वो क्या पार्टिकुलर जो सर्विस है उसी हिसाब से रहेगा ना, कोई कॉमन देने से भी चलेगा? सर, आई थिंक द वॉइस इज नॉट रीचिंग. वॉइस पूरी नहीं आ रही. अच्छा सर, मैं बोल रहा हूँ जो क्रॉस चार्ज इनवॉइसिंग का केस में एसएससी और एचएसएन क्या रहेगा? वो क्या सर्विस और गुड्स वाइज रहेगा ना, आपका कोई कॉमन एसएससी एचएसएन में से चलेगा? सर एक बार प्लीज रिपीट करेंगे, मुझे पूरी आवाज नहीं आ पा रही है. मैं बोल रहा हूँ सर, क्रॉस चार्ज इनवॉइसिंग का केस में एसएससी एचएसएन क्या रहेगा? क्रॉस चार्ज इनवॉइसिंग का, ओके, फाइन. सर आप इसे किसी भी एक नाम से, मतलब बीट इन द नेम ऑफ, आप इसे भले कुछ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विसेज का नाम दे दें और उसका एचएसएन ढूंढ लें, या आप इसे फैसिलिटेशन सर्विसेज का नाम दे दें और उसका एचएसएन ढूंढ लें. दैट कैन बी डन. मतलब इंडिविजुअल सर्विस वाइज नहीं होने से भी चलेगा ना? सर्विसेज वाइज भी दे सकते हैं, अगर पॉसिबल हो आपको तो वैसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विस दे दें, कॉमन हो जाएगा, सब में लग जाएगा आपके पास. ओके. नेक्स्ट, सूर्य मैडम बोल रहे प्लीज सजेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी. कैसे भी किसी वे में आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक जोमेटो इज स्टिल चार्जिंग टीसीएस इन केस ऑफ रेस्टोरेंट. हाँ, वो जरूर गलत है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. सुप्री बोल रहे हैं कैन यू यूटिलाइज आईटीसी ऑफ आईजीएसटी विद एसजीएसटी एंड सीजीएसटी इन एनी मैनर एंड रेशियो. बिल्कुल ठीक है. हाँ पूछा मैडम, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं क्वेरी कभी भी. बिल्कुल सर. वन ऑफ द क्लाइंट सेज दैट कुछ सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं और उन पर जीएसटी आउटपुट पे करा है, इनपुट भी लिया है, एंड नाउ द क्लाइंट सेज दैट दीज ट्रांजैक्शंस वर नल एंड वॉइड. सो व्हाट रेमेडी शुड वी गिव? जब ट्रांजैक्शंस, इनवॉइसेस हैं, ई-वे बिल्स है, आउटपुट टैक्स दिया है, इनपुट टैक्स क्लेम किया है, और अब क्लाइंट ऐसा एडमिट कर रहा है कि वो रॉन्गफुल था और नल एंड वॉइड वाउचर्स हैं,
तो फ्रॉडुलेंट तरीके से हुए हैं, तो अपन एज अ सीए उन्हें क्या सलाह दे सकते हैं? व्हाट एडवाइस कैन वी गिव, व्हाट टू डू नाउ? देखिए, frankly telling you, this is very dangerous proposition, because in case the client is agreeing himself that these are the cases of fraudulent invoices, तो immediately आप तुरंत रूप से वो ITC जरूर रिवर्स करें. And in case the ITC has been utilized also, then you have to reverse the ITC along with interest element, because ultimately these cases are going to become of bogus invoicing. आप जो भी कर रहे हैं ऐसे केस के अंदर भी वेरी वेरी कॉशियस टू स्पीक विद सच क्लाइंट. आपको जो भी उनसे करवाना है वो उनसे आप रिटर्न मेल पे लीजिए. आप एक कम से कम उनसे एक मेल पहले भी ले लीजिए दैट व्हाटएवर ITC is being availed in 3B is as per the information given by us. ये उनसे जरूर एक उनके लेटरहेड पे ले लीजिए, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर कई बार हम ऐसा देख रहे हैं इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स कंसल्टेंट्स आर बीइंग मेड अ टारगेट आल्सो कि आप इस बोगस इनवॉइसिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, तो आप उनके लेटरहेड के ऊपर आप ये जरूर ले लीजिए. दिस इज वेरी डेंजरस प्रपोजिशन. ठीक है, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा. सर, अगर क्लाइंट टैक्स ITC पे कर देता है विद इंटरेस्ट, तो क्या क्लाइंट के फंसने के या टैक्स कंसल्टेंट के ऊपर कोई दिक्कत आने के चांसेस हैं? देखिए, इसमें इशू केवल ITC का नहीं है मैडम. आप ऐसे समझिए कि बोगस इनवॉइसिंग पर से वाज नॉट परमिसिबल. समझ रहे? ऐसा नहीं कि आपने पहले ITC ले लिया और बाद में आपने रिवर्स कर दिया तो एवरीथिंग इज ऑल ओके, ऑल गुड, यू नो. और केवल इतना सा ही नहीं है, इट विल इवन इन्वोक सेक्शन 271 AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. समझ रहे हैं? मैं हल्का सा अगर आपको जिक्र करूं उसका, तो इसमें कुछ इस तरीके से हो रहा है. से फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि सपोज 1 करोड़ के ऐसे ट्रांजैक्शंस थे. सिंप्लिसिटी के लिए अपन ऐसा मान लेते हैं कि 12% GST रेट थी एवरेजली सब पे, तो 12 लाख का ITC हो गया. अभी तो हम जिक्र करेंगे 12 लाख के ITC का मैटर है. लेकिन if this transaction gets proved that yes, it was a case of bogus invoicing or it was a case of false invoice, तो section 271 AD of income tax act के अकॉर्डिंग, section 271 AD of income tax act के अकॉर्डिंग इसमें 1 करोड़ की आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी. उसमें 12 लाख की लिमिट नहीं है, उसमें फिर वो मतलब अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं है, उसमें होल ट्रांजैक्शन वैल्यू उसकी पेनल्टी लगेगी 271 AD. पूरा क्लैरिफिकेशन गाइडलाइंस ओके, फाइन सर, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है आशुतोष शर्मा जी. कंपोजिशन डीलर हु वाज पेइंग टैक्स एट 1% फॉर कंप्लीट ईयर, ओके, एंड इन द मार्च मंथ ही वाज रिसीविंग कमीशन. So can he pay 6% for only last quarter, or would he be required to pay 6% from the starting of the year, as one condition of 6% composition is that dealer is not eligible for 1%? Yes, I agree, Ashutosh ji. I believe कि कहीं ना कहीं ये भी एक उसमें एक्ट के अंदर फ्रेमिंग एरर एक छूट गई है, बिकॉज सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस आर वेरी वेरी कॉमन. मैं आपको हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा देखने में समझने में ऐसा लगता है दैट फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ द फाइल, कई बार क्लाइंट अगले साल आके जब बोलता है कि हमारी फाइल में कुछ आप बढ़ावा दीजिए, तो अदर सोर्सेज की अगर हम कोई भी इनकम उसमें इंक्लूड कर देते हैं, देन इट विल आल्सो इन्वोक द GST एलिमेंट. वो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती थी. एक तो पॉजिटिव चेंज इसमें आ ही चुका है दैट यस, कंपोजिशन डीलर कैन आल्सो सप्लाई सर्विसेज, राइट. वो 10% ऑफ द जो भी गुड्स हैं और वर्सेस 5 लाख हायर के केस में, ठीक है. लेकिन यहाँ वाले केस के अंदर अगर वो 6% का है तो 1% पे नहीं जाएगा. बिल्कुल मेरे ख्याल से ये एक एक्ट की फ्रेमिंग एरर है, एंड आई बिलीव इट विल बी वेरी हार्श ऑन द असेसी. It will be very harsh on the assessee to pay 6% for all the supply around the year. एक practical solution इसमें लोग ऐसा भी कर रहे हैं, even if he is receiving commission, still only 1% is being charged. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शुरू से ही वो 1% की कैटेगरी में ही था, और केवल इस कंडीशन की वजह से कि अब वो उसको एक कमीशन इनकम मिल गई है तो वो 6% में फॉल हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. मतलब 6% वाला जो क्लॉज है वो तो एप्लीकेबल आपके पास तब है इन केस एनी सर्विस प्रोवाइडर वांट्स टू ऑफर कंपोजिशंस की, तो इसमें 1% करके भी काम चलाया जा सकता है. ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, ऑल्दो ये फ्लॉलेस नहीं है, इट मे इन्वॉल्व सम लिटिगेशन.
सुरभि जी बोल रहे हैं कैन आई आस्क माय क्वेरी वर्बली? कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखा भी है नीचे. माय क्लाइंट my client is facing issue that its IGST ITC is first utilized with CGST, then no balance with SGST, so that they have to pay SGST in cash, but we can alter manually. So I want to ask that whether client will receive any notice from department for manually altering ITC. No, I don't think so. You will receive any kind of such notice. देखिए ऐसा है कि आपके पास ये जो कंसेप्ट थे वो रूल 86A के अकॉर्डिंग थे और वो सब अब आपके पास एप्लीकेबल नहीं है. आप निश्चिंत रहिए. पहले ये जरूर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, अब कोई इशू नहीं है. आप आराम से अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से वो 3B के अंदर जो ऑटो फीडेड आ भी रहा है उन फिगर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं एंड स्टिल देयर विल नॉट बी एनी इशू अराइजिंग आउट ऑफ दैट. Any other query, please? TCS डिडक्टेड. हाँ बिल्कुल, वो TCS डिडक्ट हो गया है Jan to March के केस में. उस केस के अंदर उन्होंने रेस्टोरेंट वाले केस के अंदर ना, हाँ मैं समझ रहा हूँ, रेस्टोरेंट वाले केसेस के अंदर ही, तो उस केस के अंदर जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उन लोगों ने TCS की एंट्री चढ़ा दी थी और आपने भी उसको एक्सेप्ट करके आपके कैश लेजर में वो आ गई है, आपके भी कैश लेजर में वो आ गई है. सो प्रैक्टिकली देयर इज नो लॉस as far as assessee is concerned and neither or nor from the side of department as well. तो उसमें कोई issue नहीं है. Can we claim it as restaurant? हाँ, no issue. I think no issue with that. But how the e-commerce is charging only 4% and not 5% yet? I think it is only because of the lack of knowledge only. Otherwise तो सही percentage charge करेंगे. That's it. Any further queries? Any liability of restaurant as this transaction? No liability of restaurant in this case. अच्छा मैडम, दिस प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड, है ना, मैं आपको दे दूंगा, वो आप बिल्कुल सर्कुलेट कर दीजिएगा. किसी भी मेंबर को कोई और क्वेरी भी हो तो भी मुझे वो आराम से पिंग कर सकते हैं. I think it's done, sir. जी मैडम, once again I would like to convey really very sorry. शुरुआत में मेरी वजह से 20-25 मिनट आप सब लोगों के बिगड़ गए. यहाँ पर somehow कुछ इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया था. But the wait was worth, sir. We really enjoyed the session. सर ये पार्ट एंड पार्सल है, टेक्निकल ग्लिचेस इन VCM एज एक्सेप्टर. हम GST में भी इतने ग्लिचेस हम लोगों ने देखे हैं, वो तो कुछ भी नहीं था. Thank you so much, sir, for all the guidance and the advices you bestowed on us today. Your valuable words, skills, and talents on the topic you have definitely rendered us with more clear thoughts. It was really a privilege hearing from you, sir. Thanks a lot. Now, I would like to invite CA Raj, sir, the Treasurer of Jodhpur branch of ICAI, to convey vote of thanks. Good evening to all. It was pleasure having you, sir, again with the fraternity, our members of Jodhpur, and it was great hearing you about. It's a burning issue, and year end we have just completed the
March year-end 2022, and your guidance and expertise in the subject would be very much helpful to the members at large. We would be expecting more from you down the line, sir. Thank you so much, sir. And thank you to the audience from Jodhpur branch. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So nice of you. Thank you. Thank you for the wonderful opportunity. Thank you, sir. Thank you all. Bye. Bye. Akshati, please end the meeting.